ओके, सो कल का जिन्होंने एक्सरसाइज नहीं किया था तो वी विल स्टार्ट विद द पर्सन हु हैज नॉट डन फायर लोड कैलकुलेशन एक्सरसाइज. हु इज गोइंग टू स्टार्ट? कल कुछ कमिटमेंट किया था ना कि कल मैं बना के लाऊंगा, करके लाऊंगा लोड कैलकुलेशन. है कोई? नहीं है? किसी ने नहीं किया? तो फिर तकलीफ है. अगर आप एक्सरसाइज नहीं करके आएंगे देन इट विल बी ए प्रॉब्लम. आप फिर सीख नहीं पाएंगे. चलिए, कोई बात नहीं. Actually, sir, I have done it, but right now, at the moment, I'm outside, so difficult to share my screen from the mobile. So if I send this, I have already taken the photo from the laptop. So if I share this photo, can anybody share a screen for me? I will share photo No, in the WhatsApp group. no, let it be there. No issue. My screen is visible. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Okay. So, as per content of NFPA and your unit So you 5 can put in full screen, sir. Full screen. Yeah, I'm just coming. Yes, you can click on that hide option. Yeah, Yes. now it is okay. Yes, sir. It is okay. So we have discussed a lot with reference to fire load and all the things. And as per NFPA 557, more or less, most of the things are similar, but a few things that is bomb calorimeter or something like that you will learn, which will be, you can understand how this calorific value of material comes from, which is mentioned in NBC table number. What was the table number where calorific value given? Number 9, sir. Yeah. Similarly, how these you can say data come out? There is a process like a flash point. How do you come to know that class A material or some this flammable liquid is having a flash point this much degree centigrade and fire point this much? There is a lab test, cup contest, you can say closed cup, open cup. In that particular experiment, flash point is come out as a result. Okay. So what are the things NFPA 557? We have already discussed. Few definition might be there. Design fundamental, development of fire load, frequency of structurally significant fire, formula for calculating frequency of structurally significant fire, application of the frequencies of structurally significant fire to occupancy, fire load density, occupancy base fire load density, survey method based on fire load density, documentation, inspection, and maintenance, proximate analysis of solid fuel, ultimate analysis of solid fuel, calculation of calorific value through the long formula, difference between HVC high calorific value and LVC low calorific value, bomb calorimeter. At last, there will be a video. If it is possible, I will display so that you can understand what is bomb calorimeter. So, standard for determination of fire load for use in structural fire protection design. NFPA 557 address the determination of the fire load and fire load density to be used as the basis for the evaluation and design of structural fire performance of a building. तो ये अगर हमने पहले भी बात किया है, फायर लोड कैलकुलेशन हमें क्या क्यों जरूरत है, किस काम में आता है, तो वो यही बोल रहे हैं. कोई भी स्ट्रक्चर को आप डिजाइन करना है तो डिजाइन करने से पहले अगर ये सारी चीजें आपके पास रहेंगी तभी तभी हम लोग उस बिल्डिंग को एज पर फायर लोड और जैसा कि एनबीसी में टाइप 1 2 3 4 के अकॉर्डिंगली वी कैन डिजाइन.
The purpose of NFPA 557 is to provide standard methods and values for use in the determination of fire load and fire load densities for design basis fire. This is done using a risk framework. Two methodologies are detailed in the document: an occupancy based density method and survey based. जैसा कि हमने पहले बीच में आपको याद होगा, we have discussed, you can calculate the fire load simply on the basis of general layout diagram, P&ID diagram, piping and instrumentation design, and equipment placing, dimension of equipment, how much content the vessel or the tank will be used. So in that way, that is based on there are two types. That is based on document based fire load, and a survey based method is you need to have a visit of that particular site and check each and everything, what are the things are there. Sometime in drawing point of view, if drawing is approved, then it is okay, and drawing is shared to you or something who is going to calculate the fire load is genuine, then only you can come to the right fire load. Otherwise, what happens, sometimes people show you design different, and at field there might be a different scene. They will say, told you that we are storing flammable liquid or something chemical with low fire load density to get it calculation with you to result within their desire, so that they don't want to enhance the fire protection system. They just do it this exercise to compliance, for legal compliance or somebody else requirement. Okay, but survey based method, it is a method you are seeing, means it is said seeing is believing. मतलब ऐसा कहा जाता है ना, जो देखते हैं आंखों से उसी पे विश्वास होता है, लेकिन कभी आप ये भी बोलोगे सर आंखें से देखा हुआ भी कभी गलत हो जाता है, तो वो अलग बात है. The scope of this standard is the determination of the fire load and fire load density to be used as the basis for the evaluation and design of structural fire performance of a building. ये फायर लोड ही ऐसा है कि जब आपको क्या बेनिफिट मिलेगा इससे, बिल्डिंग स्ट्रक्चर का जो परफॉर्मेंस है वो उसको डिजाइन करने में, जैसे हमने कल बात किया था कि फायर लोड अगर आपने बिल्डिंग डिजाइन की है 4 आवर के लिए, सो इट मींस दिस बिल्डिंग नीड टू बी सस्टेन 4 आवर. सडन कोलैप्स शुड नॉट बी देयर. अगर आपने सही तरीके से उसको डिजाइन किया है, कंस्ट्रक्शन किया है, मटेरियल जो उसमें चाहिए थे वही लगाए आपने, तो उसको उस लेवल तक सस्टेन करना है. और फायर लोड कैलकुलेशन का पर्पस और बेनिफिट वही है कि इस तरह का स्ट्रक्चर या बिल्डिंग बनाया जाए जो कि फायर परफॉर्मेंस जो हमने सोचा है, जो हम चाह रहे हैं, उसको प्रैक्टिकली वो मीट कर सके. कंटेंट डेफिनेशन है कुछ, आप देखेंगे थोड़ा इधर उधर होंगी डेफिनेशन. हमारा जो एनबीसी में डेफिनेशन दी गई है फायर लोड की और एनएफपीए डेफिनेशन में स्लाइटली चेंज मिलेगा. द फायर लोड ऑफ ऑल मूवेबल, थोड़ा अलग तरीके से बताया है इन्होंने, है तो वही बात. द फायर लोड ऑफ ऑल मूवेबल और सिक्योर्ड कंटेंट एंड फिनिशिंग एंड ऑल ऑक्यूपेंट पोजीशन विद इन ए कंपार्टमेंट इंक्लूडिंग ऑल द आइटम that can be placed into compartment or taken out of it without causing structural damage expressed in MJ. फायर लोड क्या है, वो ऑल मूवेबल इक्विपमेंट है या सिक्योर कंटेंट है ना, या फर्निशिंग है ऑल ऑक्यूपेंट. हमने क्या बोला था, जो भी बिल्डिंग में जितना भी कंबस्टेबल मटेरियल है वो क्या है, उसका कैलकुलेशन करेंगे हम केजी में. वही बात ये कह रहा है, लेकिन थोड़ा घुमा फिरा के बोला है ऑल मूवेबल और सिक्योर कंटेंट. मूवेबल कौन से हैं और सिक्योर कौन से हैं, बता सकता है कोई? एनीबडी कैन टेल व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मूवेबल और
सिक्योर कंटेंट। मूवेबल से मीन्स लिक्विड सर। नहीं नहीं नहीं, फायर लोड की बात कर रहे हैं आप, लिक्विड मूवेबल गैस में नहीं। मूवेबल में टेबल फर्नीचर यस, वेरी गुड। सिक्योर, और सिक्योर में जैसे कि कुछ लाइटिंग फिक्सर है। लाइटिंग फिक्सचर, अलमीरा, है ना, विंडोज, विंडोज। है ना। एंड फर्निशिंग, वो फर्निशिंग आपने अगर कुछ किया हुआ है वॉल में, आपने प्लाईवुड लगा दिया है, या वॉल में पेंटिंग किया है, या वॉल के ऊपर आपने वॉलपेपर लगाया है ना। एंड ऑल ऑक्यूपेंट पोजेशन विद इन द कंपार्टमेंट, जो पर्टिकुलर कंपार्टमेंट में जहां आप लोड कैलकुलेट कर रहे हैं उसके बारे में बोल रहा है। ठीक है, तो उसमें और इसमें ज्यादा फर्क नहीं है, लेकिन थोड़ा कहने का तरीका अलग है। आपको कुछ फर्क दिख रहा है इस डेफिनेशन में और हमने जो किया था? डेफिनेशन में फर्क जरूर है, लेकिन काम लगभग वही कर रहे हैं हम। लेकिन इसने पर्टिकुलरली स्पेसिफिकली डिफाइन किया गया है मूवेबल आइटम कौन से हैं, ताकि आप ऐसा देख सकें कि जो मूवेबल आइटम है, कुर्सी, टेबल, चेयर, डबल बेड। फिर वो बोलता है कि सिक्योर कंटेंट, मतलब सिक्योर किए गए कौन से हैं। तो वो आपको इजीली 3-4 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। डिस्ट्रीब्यूटेड फायर लोड, अब हमने तो वहां एक ही फायर लोड पढ़ा था, यहाँ ये बोलता है द ओवरऑल फायर लोड ऑफ ए कंपार्टमेंट एक्सप्रेस इन एमजे। मतलब हमने जो ग्रैंड टोटल फायर लोड हमने गिनती किया था ना, आपको टेबल बताई थी कि हर एक यस सर। चीज का हमने एक एक एक्सेल शीट में हर एक पेपर का अलग, रबड़ का अलग, वुड का अलग, फिर लास्ट में हमने टोटल कर दिया डिवाइडेड, जो टोटल करने के बाद आया वो फायर लोड था। तो ये भी वही कह रहा है, द ओवरऑल फायर लोड ऑफ ए कंपार्टमेंट, सेम वही चीज है। फिक्स फायर लोड, the fire load of all combustible material used as structural element or as interior finish और ट्रिम, ब्रैकेट में लिखा है आपका, वॉल, सीलिंग एंड फ्लोर, इंस्टॉल्ड कंसील बिहाइंड वॉल्स, फ्लोर, सीलिंग, एक्सप्रेस इन एमजे। तो फायर लोड में थोड़ा इसने और इसको इलेबोरेट किया है कि आपने अगर फॉल सीलिंग बना रखी है, डबल वॉल है, अगर मान लीजिए आपका फॉल्स फ्लोर है ना, तो ये सारे जो भी मटेरियल उसमें रखे हुए हैं वो आपको कंबस्टिबल मटेरियल कैलकुलेट करना है, तो फिक्स लोड आ गया। अभी लोकलाइज फायर लोड, द फायर लोड एट ए लोकेशन विद इन ए कंपार्टमेंट that is outside the scope of normal variation in the distributed fire load। इसका क्या मतलब है? जो आपका नॉर्मल वेरिएशन के, जो हमने ऊपर पढ़ा, फिक्स लोड, डिस्ट्रीब्यूटेड लोड, लोकलाइज, द फायर लोड एट ए लोकेशन विद इन द कंपार्टमेंट दैट इज आउटसाइड द स्कोप ऑफ नॉर्मल वेरिएशन। मतलब आपने कुछ चीजें हैं, फायर लोड फिक्स ही कर दिया। वेरिएबल फायर लोड क्या होगा कि मैंने आज इस कमरे में कोई 2 चेयर आज लगा दी एक्स्ट्रा, तो वो वेरिएबल हो गया। और एक मैंने जो फिक्स कर रखा है, इस कमरे में एक ही बेडरूम रहे, एक ही बेड रहेगा, एसी भी एक ही रहेगा, वेरिएबल नहीं है वो। तो उसके बारे में ये बात कर रहा है। कंटेंट एंड फर्निशिंग, any movable object in a building that normally are secured or otherwise put in place for functional reason, excluding part of internal structure of a building, any item meeting the definition of interior finish, contents and furnishing। इसके अंदर ये 2 पार्ट बताए गए हैं इसमें। डिजाइन बेसिस फायर, द सेट ऑफ कंडीशन दैट डिफाइन द डेवलपमेंट ऑफ ए फायर and spread of combustion product throughout a building or portion thereof। डिजाइन बेसिस फायर अगर आपको कोई पूछेगा तो उसका ये क्या कहने का मतलब है, द सेट ऑफ कंडीशंस, कंडीशन, ऐसी कंडीशन 1 2 5 10 15 एन नंबर ऑफ कंडीशन, डिफाइन दैट डेवलपमेंट ऑफ फायर, जिसमें फायर का डेवलपमेंट और फायर का जो स्प्रेड है, कंबस्टिबल जो प्रोडक्ट्स बनेंगे थ्रू आउट ए बिल्डिंग और पोर्शन, तो वो पार्ट को इसने डिजाइन बेस्ड फायर में डिफाइन किया है। फायर लोड, टोटल एनर्जी कंटेंट ऑफ कंबस्टिबल मटेरियल इन ए बिल्डिंग, स्पेस,
or area including furnishing and content and combustible buildings elements expressed in mj। सेम वो फायर लोड हमने पढ़ा था, ऐसा ही ये फायर लोड है, कोई ज्यादा फर्क नहीं है इसमें। फायर लोड डेंसिटी, the heat energy expressed in mj per meter square that could be released per unit floor area of compartment by the combustion of the content of the compartment and any combustible part of the building itself। फ्यूल लोड क्या है? द टोटल वुड equivalent mass of combustible material in a building space or area including furnishing and content and combustible building element expressed in kg। फ्यूल लोड आपको ये ध्यान रखना है कि जो हमने बोला था कपड़ा, कॉटन, लकड़ी केजी में गिनते हैं ना, तो वो फ्यूल लोड है, एक्सप्रेस इन केजी। सिंपल है ना ये, बस टर्मिनोलॉजी अलग है। हम वहां बोल रहे हैं कि कंबस्टेबल मटेरियल इन केजी, तो उसका क्या मतलब है यहाँ पे? फ्यूल लोड। फ्यूल लोड मतलब कितना फ्यूल है। ऐसे ही आपको एक टर्मिनोलॉजी पढ़ने को मिलेगा, थर्मल लोड। एक एयर का लोड आएगा, जैसे लोअर एक्सप्लोजिव लिमिट और अपर एक्सप्लोजिव लिमिट के बारे में जानते हैं आप? सुना है किसी ने? लोअर एक्सप्लोजिव लिमिट, अपर एक्सप्लोजिव लिमिट के बारे में कोई जानता है? हाँ सर, सुना है सर। यस सर। क्या होता है? अपर एक्सप्लोजिव लिमिट मीन्स होता है सर, जैसे कि कोई एलपीजी में कोई फायर हुआ है और उसका अगर कंट्रोल रूम से प्रेशर बढ़ा दिया जाए तो अपर लिमिट में पहुंच जाएगा। अच्छा, ये फायर जो होती है, एक्सप्लोजन होता है, ये लोअर फ्लेमेबल लिमिट और अपर फ्लेमेबल लिमिट बीच में ही क्यों होता है? एलईएल से नीचे क्यों नहीं होता और यूईएल से ऊपर क्यों नहीं होता? एलईएल में होगा तभी फायर होगा सर। एलईएल से अगर कम कंसंट्रेशन है तो फायर क्यों नहीं होती है? क्या रीजन है? एलईएल से कम है सर, इसके बारे में सर पता नहीं सर। थर्मल लोड ही है ना, minimum percentage of the flammable vapors minimum लोड है। एलईएल में मान लीजिए आपका 2 है ना, तो एयर का थर्मल लोड अगर 2% से ऊपर, मतलब 2 से नीचे जाएगा ना, वो 2 से नीचे, एलईएल से नीचे 2 जा रहा है ना, तो उसके ऊपर एयर का थर्मल लोड आ रहा है। और ऐसे ही जब यूईएल हो गया, यूएल से ऊपर चले गए हम, तो फ्यूल लोड आ गया। फ्यूल का थर्मल लोड आया ना, फ्यूल लोड आ गया, फ्यूल ज्यादा हो गया। बात समझ रहे हैं? फ्यूल लोड ज्यादा हो गया एलईएल के ऊपर जाने से, इसलिए भी फायर और एक्सप्लोजन नहीं होता। एक कॉम्बिनेशन में होना चाहिए ना। ऐसे ही फ्यूल लोड जो हम एक्सप्रेस कर रहे हैं इन केजी, एक एग्जांपल है, एक बहुत बड़ा बंडल आप किताबों का लगाइए और उसमें नीचे 1-2 पेपर में आग लगाइए, थोड़ी देर बाद आग लगेगी और फिर बुझ जाती है, क्योंकि फ्यूल लोड बहुत ज्यादा है, सरफेस एरिया बहुत कम है। या कोई आग लग रही है और उसके ऊपर ऑलरेडी आप अप्लाई कर रहे हैं। कुछ आग ऐसी भी होती है, अगर आपने सुना होगा, देखा होगा, कि मान लीजिए कोयले में आग लगी, तो कई बार ये जो मेटल में आग लगती है, जिंक में, और इसमें, तो उसमें जिंक से ही आग बुझाई जाती है, डस्ट से ही। फ्यूल लोड बढ़ा दिया जाता है उसमें, ताकि एयर का जो एयर मिल रहा है उसको वो खत्म हो जाता है और सरफेस कवरिंग हो जाता है। सर हाँ बोलिए सर, इसको ऐसा मान सकते हैं ना कि ट्रायंगल ऑफ फायर, उसको पूरा नहीं होगा तो फायर नहीं होगा। नहीं, वो तो खैर है ही। स्टिचोमेट्रिक मिक्सचर होना एक जरूरी है, बहुत ही। एक निश्चित अनुपात में तीनों चीजें होनी चाहिए, तभी फायर होगा। लेकिन एयर लोड और फ्यूल लोड, हम फ्यूल लोड बढ़ रहे हैं ना, फ्यूल जब ज्यादा हो जाएगा तो भी नहीं होगा तो सर। कंडीशन भी एक यूईएल के ऊपर क्या होता है, फ्यूल लोड ज्यादा हो गया, एयर ज्यादा हो लोड, गया सर। है ना? जी सर, जी सर। तो इंटीरियर फिनिश तो मेरे ख्याल में बताने की जरूरत नहीं है। नहीं। और सर जो लोअर होगा तब, लोअर एक्सप्लोजिव लिमिट में जाएगा तब, वो थोड़ा सा बोल दीजिए सर, डाउट क्लियर नहीं हुआ सर। लोअर एक्सप्लोजिव लिमिट है ना, जी उसमें सर। मान लीजिए किसी भी गैस का 2% है, तो जी। 2% का मतलब बाकी का क्या है उसमें? आपका एयर 98% एयर है सर। ना? अब जी।
फायर को लगने के लिए और 98% आपका है तो 70% तो नाइट्रोजन हो गया, लगभग बिल्कुल 20.89 ऑक्सीजन हुआ। ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल सर। हाँ अब कोई भी फायर लगने के लिए ऑक्सीजन का एक पर्टिकुलर कंसंट्रेशन चाहिए होता है, 15.5 से 16% ऑक्सीजन, 16% हुआ, हम बिल्कुल सर बिल्कुल। तभी वो फायर हो सकती है, सस्टेन तभी कर सकती है। तो लेकिन वहां सर वो सर ये कोल फायर में कुछ होता है ना, एक्सेप्शनल केस होता है, वो कम ऑक्सीजन में भी फायर पकड़ लेता है। नहीं, ऐसा नहीं है। कोल फायर में क्या होता है, आप देखिए, पोरस मटेरियल है वो। पोरस मतलब उसमें छिद्र होते हैं। जी सर। पोरस मटेरियल में ऑलरेडी ऑक्सीजन जब अंदर चली जाती है, आप देखेंगे जी कोयले की आग को ना लगे उसके लिए क्या प्रावधान किए जाते हैं। पहला तो क्वालिटी, कोयला जी ऐसी सर। क्वालिटी का होना चाहिए जिसमें फाइंस कम हो, डस्ट फाइव फाइन होंगे। तो 10%। और दूसरा उसके बाद क्या करते हैं, उसका मॉइस्चर मैनेजमेंट, अब वाटर स्प्रिंकलिंग करते हैं उसमें वाटर स्पेसिफिक स्प्रे करते हैं, बिल्कुल सर। कि मॉइस्चर इतना मेंटेन करना है। तीसरा जी क्या करते हैं, कई जगह आप देखोगे कोल के ऊपर एक्सकेवेटर चढ़ा के उसको कंप्रेस कर देते हैं, ट्रेपेजिन शेप बना देते हैं। बिल्कुल सर, करते हैं सर। इस शेप में क्या होता है, एयर के साथ एक्सपोज वो कम हो जाता है और कॉम्पैक्ट हो जाता है। कॉम्पैक्ट मतलब जो पोरोसिटी है, छिद्र है, जो छेद है, उनका बीच में दूरी कम रह जाती है, ऑक्सीजन अंदर जा नहीं पाती। करेक्ट सर। तो कोयले की आग ऐसा नहीं है कि आपको दिख रहा है, वो स्मोल्डरिंग फायर, सीट ऑफ फायर नीचे है। हम सोच रहे हैं कि ऐसा है कि ऑक्सीजन अच्छा कम। अच्छा, वो पोर से जा रहा है ऑक्सीजन, वहाँ जो छिद्र होते हैं वहां हाँ, से जा रहा बस है। जी। आपको बाहर नहीं दिख रहा है वो बात अलग है, आपको स्मोक कहीं दिखेगा, फ्लेम कहीं दिखेगी, लेकिन सीट ऑफ फायर कहीं और होगा। ठीक है। थैंक यू सर, थैंक यू सर। ओके सर। ऑक्यूपेंसी, the purpose for which a building or other structure or part thereof used or intend to be used। अभी जैसे हमने बिल्डिंग की डेफिनेशन क्या पढ़ी थी, वही ऑक्यूपेंसी है यहाँ, जी ज्यादा सर। फर्क नहीं है उसमें। अभी क्या है, डिजाइन फंडामेंटल के बारे में है, मैथोलॉजी। द मैथोलॉजी डेवलप in this standard shall provide a risk based design, fire load and fire load densities for use in design and evaluation of structural fire performance. Fire load, the fire load for design basis fire shall be determined by a combination of all of the following: statistical distribution of fire load in building, फायर इनिशिएशन फ्रीक्वेंसी, जो मैंने आपको पहले भी क्लास में बताया था, पहली या दूसरी क्लास में, कि वहां पे कुछ फायर इनिशिएशन की फ्रीक्वेंसी भी आइडेंटिफाई रखते हैं वो लोग। डाटा मैनेजमेंट बहुत अच्छा है, जो कि हमारे यहाँ नहीं है ना। कि इतने अगर हॉस्पिटल में 1 मिलियन हॉस्पिटल में 15% आग लगेगी या 5 आग लगेगी, इस तरह का उन्होंने आगे, उन्होंने टेबल भी कल आपको बताई थी मैंने, कल मतलब डे बिफोर यस्टरडे यू कैन से, परसों मैंने बताई थी। Fire initiation frequency, effective and reliability of fire protection features that contribute to fire control in early stages of fire। तीन चीजें क्या हैं, स्टैटिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फायर लोड इन ए बिल्डिंग, उसमें बाकायदा फायर लोड डिस्ट्रीब्यूशन आपका एज पर स्टेटिस्टिक्स और उसमें किया जाना चाहिए, है ना। इनिशिएशन फ्रीक्वेंसी, फायर इनिशिएशन फ्रीक्वेंसी पता होनी चाहिए या ऑलरेडी कैलकुलेट करके रहती है। लास्ट आता है इफेक्टिवनेस एंड रिलायबिलिटी ऑफ फायर प्रोटेक्शन फीचर्स दैट कंट्रीब्यूट टू कंट्रोल इन ए फायर इन अर्ली स्टेज। ये इसमें क्या बोलते हैं, वो आपने फायर स्प्रिंकलर सिस्टम लगा दिया। अब लगा दिया मतलब ये नहीं है कि आपको वो सुरक्षित हो गए आप, या आपने सोचा मैंने तो बहुत बढ़िया काम कर दिया। उस सिस्टम की इफेक्टिवनेस कितनी है, रिलायबिलिटी कितनी है, ये कब चेक करेंगे और कैसे चेक होगी वो बताइए, थोड़ा बता सकता है कोई। पॉइंट नंबर 3 के बारे में कोई बोल सकता है। मेरी आवाज जा रही है सबके पास। यस सर। यस सर, यस सर। पॉइंट 3 क्या बोलता है, वो कौन बताएगा। क्लास में तो है ना आप सभी। जी सर। लेट मी
दैट मीन्स कि हमने जो ज्वाइन करके ऑफिस का काम पीपीटी बना रहे हो आप, कहीं मोबाइल पे ज्वाइन कर दिया, लैपटॉप पे काम कर रहे हैं, ऐसा तो नहीं है ना? नहीं 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 सर, पूरा कंसंट्रेशन है सर। तो फिर कंसंट्रेशन दिखाइए मुझे, कैसे विश्वास होगा? पॉइंट नंबर 3 समझाइए मुझे। इफेक्टिवनेस एंड रिलायबिलिटी सर, उसका जब हम लोग उसका जो ऑपरेशन करते हैं इनके ड्यूरिंग द मेंटेनेंस, प्रिवेंटिव मेंटेनेंस और ट्रेनिंग के दौरान, तो वो टाइम पे हम चेक कर सकते हैं। और रिलायबिलिटी और कंटिन्यूसली उसका जो मेंटेनेंस है वो होना चाहिए एज पर द डिफाइंड फ्रीक्वेंसी। और कोई कुछ कहना चाहेगा इसमें? सर जैसे हमने स्प्रिंकलर्स लगाए तो वो जो वहां पर मटेरियल्स है उसके अनुसार सही ढंग का और सही टेम्परेचर का होना चाहिए। और कोई? और स्मोक डिटेक्टर्स को भी ऐसे हम लोग डिफाइन कर सकते हैं। नहीं, और ये उसका जो इंस्टॉलेशन है, इंस्टॉलेशन जो हुआ है एज पर आईएस स्टैंडर्ड के हिसाब से, और वहाँ की जो नेचर ऑफ फायर और वो जो है उसके हिसाब से वो एक्यूरेट है या नहीं है, वो भी एक चेक करता है इंस्टॉलेशन का। और कोई बताना चाहेगा? इफेक्टिवनेस एंड रिलायबिलिटी। इफेक्टिवनेस कब पता चलेगी? जब आपको ग्राउंड में 100 मीटर की दौड़ में भाग लेना पड़ेगा, वरना तो आप बोलोगे मैं तो बहुत इफेक्टिव हूं, 100 मीटर दौड़ तो मैं ऐसे ही दौड़ जाऊंगा। लेकिन एक्चुअल में आपका इफेक्टिवनेस जब ग्राउंड पे आपको उतारा जाएगा और कहा जाएगा 100 मीटर दौड़िए, आपने कहा था मैं तो 9 सेकंड में दौड़ जाता हूं 100 मीटर। तो इफेक्टिवनेस इन द इवेंट ऑफ फायर और इन द इवेंट ऑफ मॉक ड्रिल, जब आपने उसको इस तरह की सिचुएशन आई, या मान लीजिए आपका 10 साल 5 साल 6 साल में कंपनी में या साल में कभी ऐसी फायर इंसिडेंट हुई और वो सिस्टम बहुत ही अच्छे तरीके से काम किया उसने, तो इफेक्टिवनेस मतलब जितना उसको चाहिए था उतने हिसाब से उसने आपका फायर को एक्सटिंग्विश कर दिया, या डिटेक्शन करना था तो आपका फायर अलार्म डिटेक्शन सिस्टम का जो एज पर रिक्वायरमेंट है, इट शुड बी लेस देन 10 सेकेंड, वो 10 सेकेंड में अलार्म भी डिटेक्ट भी कर लेना चाहिए, कम्युनिकेट भी कर देना चाहिए और अलर्ट भी आ जाना चाहिए, सायरन भी बज जाना चाहिए। तो वो आप मॉक ड्रिल में देख सकते हैं, रिलायबिलिटी उसका देख सकते हैं। अब्रॉड में ये भी एक स्टेटिस्टिक्स देखा जाता है कि मान लो 10,000 बिल्डिंग थी, पिछले 10 सालों में 10,000 बिल्डिंग में से स्प्रिंकलर कितने बिल्डिंग में लगे थे और कितने स्प्रिंकलर आग के समय काम किए और आग कितने इंटेंसिटी की थी और उन्होंने कितना इफेक्टिवली आग को कंट्रोल कर लिया या फेल हो गए। तो वो एक रिलायबिलिटी स्टडी भी और इफेक्टिवनेस स्टडी इस तरीके से की जाती है। हमारे यहाँ पता नहीं चलता, हमारे यहाँ क्या है, आग लग गई बुझ गई, पता नहीं स्प्रिंकलर देखा नहीं देखा क्या हुआ, कोई उसका हिसाब किताब मिलता है क्या? क्योंकि आग बुझाने में बाद में बुझाने के बाद में जब टीम आ जाती है, अब ये नहीं पता चलता कि ये स्प्रिंकलर से आग बुझी है या जो एडिशनल रिसोर्स आया उसकी वजह से आग बुझी है। अगर स्प्रिंकलर लगाया गया है इटसेल्फ तो आग को स्प्रिंकलर से बुझने देने हम उतना समय दें, चेक करें कि ये आग, लेकिन आप बोलोगे तो प्रॉपर्टी डैमेज हो जाएगा, इतनी देर इंतजार थोड़ी करेंगे हम, बात तो सही है। तो वो इफेक्टिवनेस और रिलायबिलिटी के बारे में इस तरह की बातें चलती रहती है और आती है। अब अगला है स्टैटिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फायर लोड। द स्टैटिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द फायर लोड ऑफ द बिल्डिंग शैल बी डिटरमाइंड बाय वन ऑफ द फॉलोइंग: स्टैटिकल सैंपलिंग एंड एनालिसिस ऑफ द सब्जेक्ट और सिमिलर बिल्डिंग। उसका सैंपलिंग और एनालिसिस करना पड़ेगा आपको थ्रो द यूज ऑफ सुटेबल ऑक्यूपेंसी बेस्ड मीन्स एंड स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ फायर लोड डिस्ट्रीब्यूशन। कि आपको फायर लोड डिस्ट्रीब्यूशन में कोई डिविएशन है क्या, वो चेक करना पड़ेगा। ऑक्यूपेंसी बेस जो मीन्स ऑफ एस्केप या उस तरह के दिए गए, कितने प्रकार दिए गए बाहर आने के, है ना। फ्रीक्वेंसी ऑफ फायर इनिशिएशंस। द फ्रीक्वेंसी ऑफ फायर इनिशिएशन इन द बिल्डिंग शैल बी डिटरमाइंड फ्रॉम नेशनल स्टैटिस्टिक स्टडीज ऑफ द फायर इंसिडेंट डाटा। ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया ये चीज, वही लिखा हुआ है ना यहाँ। इफेक्टिवनेस ऑफ फायर प्रोटेक्शन फीचर्स। अब फायर प्रोटेक्शन का जो है फीचर्स कौन से होते हैं, कितने इफेक्टिव हैं, उसके बारे में आपको स्टडी का मौका देता है ये पॉइंट।
The effectiveness of fire protection features in controlling fire before the fire become structurally significant shall be assessed by all the following. मतलब फायर का असेसमेंट उस लेवल कंट्रोल, ये ऐसा बोल रहा है कि द इफेक्टिवनेस ऑफ फायर प्रोटेक्शन फीचर्स इन कंट्रोलिंग फायर, उसकी इफेक्टिव जो फायर प्रोटेक्शन है उसका फीचर्स एक ये भी है कि वो कितना इफेक्टिव है फायर को कंट्रोल करने के लिए बिफोर द फायर बिकम स्ट्रक्चरली सिग्निफिकेंट। स्ट्रक्चरली सिग्निफिकेंट का मतलब ये है कि छोटी सी आग लगी या आग लगी और उसका फायर ग्रोथ और प्रोपेगेशन ऑफ फ्लेम समय के साथ बढ़ता गया और ये सिस्टम एक्चुएट होना चाहिए था आपका, उस टाइमलाइन में एक्चुएट नहीं हुआ। एक्चुएट हो गया तो प्रेशर सफिशिएंट नहीं था, प्रेशर सफिशिएंट था तो स्प्रे का पैटर्न बराबर नहीं था, और आपका जो स्ट्रक्चरल पार्ट है, जो कॉलम है बिल्डिंग स्ट्रक्चर के, वो एक्सपोज हो गए फायर में। ये कहना चाहता है ये। फंक्शनल एनालिसिस, नेशनल स्टैटिकल एनालिसिस फॉर द कंट्री ऑफ द रीजन साइट। ठीक है, इसको मैं किसी को डाउट है लास्ट वाला जो हमने डिस्कस किया, समझ में आ गया सभी को? इफेक्टिवनेस ऑफ फायर प्रोटेक्शन फीचर्स, कोई समझा सकता है मुझे? सर ये फंक्शनल एनालिसिस है, वो जब एक्चुअल वो अपलोड होगा तो उसके हिसाब से हम देख सकते, एनालाइज कर सकते हैं। पर ये नेशनल स्टैटिस्टिकल एनालिसिस वो कैसे वो तो मैंने पहले ही बताया, हमारे पास नहीं है वो, लेकिन जो हमारे पास है हम वो तो कर सकते हैं ना। ओके सिस्टम लगा, फायर अलार्म डिटेक्शन हुआ, हाँ फाइनल में टाइम आएगा या सीसीटीवी Okay. कैमरा में टाइम देख सकते हैं, आग इतने बजे लगी, इस लोकेशन पे लगी, प्रोपेगेशन ऑफ फ्लेम ऐसे हो रहा था, बर्निंग Okay. मटेरियल का स्पीड कैसे था, उसका पाथ क्या था, और ये स्प्रिंकलर सिस्टम ऑपरेट हुए तो इसके बारे में अगर वीडियो फुटेज या कुछ आपको ऐसा दिख रहा है क्या, वो तो चीज हम ओके ओके नेक्स्ट है combustibility of material, non-combustible material, a material that in the form of which it is used or under the condition anticipated will not ignite, burn, support combustion or release flammable vapor when subject to fire or heat। non-combustible material क्या होते हैं, उसकी डेफिनेशन है, इसमें तो कुछ ऐसा नहीं है, समझ में नहीं आ रहा है या समझाऊं उसको? कोई भी एंटीसिपेटेड सिचुएशन में जो ना तो वो जलते हैं, ना जलने में सपोर्ट करते हैं, ना फ्लेमेबल वेपर रिलीज करते हैं, ऐसे पदार्थों को हम कहते हैं नॉन कंबस्टेबल हिंदी में। लिमिटेड कंबस्टेबल मटेरियल, द मटेरियल शैल बी composed of material that in the form and thickness used neither exhibit a flame spread index greater than 25 nor evidence of continued progressive combustion। ये भी इंडेक्स का भी एक है, उसमें दिया गया है सर। हाँ, अगर स्टील है तो स्टील इज बाय नेचर नॉन कंबस्टिबल, बट नहीं, कैसे नॉन कंबस्टेबल है स्टील? उसको कुछ टेम्परेचर मिलेगा ज्यादा तभी हुई। नहीं, आप ये बताइए, नॉन कंबस्टेबल मटेरियल है क्या स्पिल? क्या कह रहा है आप? लास्ट लाइन पढ़िए आप, सपोर्ट कंबशन, जो कि ना तो सपोर्ट करता है कंबशन में, ना रिलीज करता है फ्लेमेबल वेपर। तो स्पिल में फ्लेमेबल वेपर तो होंगे ना, जो आप कह रहे हो स्पिल फ्लेमेबल वेपर तो निकलेगा ही ना, उसमें एम्बिएंट टेम्परेचर की वजह से वेपराइज तो होगा ना। हाँ बराबर, नहीं हो, राइट, है ना? तो नॉन कंबस्टेबल मटेरियल सिंपल एग्जांपल है आपका जो स्टोन है ना? तो ये डेफिनेशन में लिखा है कि ऐसे पदार्थ जो कि विल नॉट इग्नाइट, ना तो जलते हैं, ना विल नॉट इग्नाइट, बर्न, सपोर्ट कंबशन, कंबशन को भी सपोर्ट नहीं करते, जो फ्लेमेबल लिक्विड भी रिलीज नहीं करते, है ना?
व्हेन सब्जेक्टेड टू फायर और हीट, जब उनको आग या हीट दी जाती है। ठीक है। लिमिटेड कंबशन मटेरियल क्या है वो हमने बात कर लिया, एक टेबल दी गई है उसके बारे में। वेयर द टर्म लिमिटेड कंबस्टेबल इज यूज्ड in this standard, it shall also include the term non combustible। ठीक है। अब क्या है टाइप ऑफ फायर लोड, डिस्ट्रीब्यूटेड फायर लोड, लोकलाइज फायर लोड। अब डिस्ट्रीब्यूटेड फायर लोड क्या है, डिस्ट्रीब्यूटेड फायर लोड shall be determined to reflect the total fire load throughout a compartment। Distributed fire load shall be determined in according with the occupancy based fire load density and survey based फायर लोड डेंसिटी। पहले पढ़ चुके हैं ना हम, पहले स्लाइड में आ चुका है, ऑक्यूपेंसी बेस्ड लोड डेंसिटी और सर्वे बेस्ड लोड डेंसिटी। लोकलाइज फायर लोड क्या है, लोकलाइज फायर लोड shall be determined to reflect concentration of combustible material that have potential to cause a more severe thermal exposure than the thermal exposure that would result from the uniform fire load। Localized fire load shall be reported by location in the building। जैसे एक पर्टिकुलर एक सेगमेंट में कहीं भी किस लोकेशन में बिल्डिंग का नॉर्थ कॉर्नर में है, इतना लोड नॉर्थ कॉर्नर में ना, लोकलाइज लोड shall include the expected value and a measure of variability of the value। ठीक है। फ्रीक्वेंसी ऑफ स्ट्रक्चरल सिग्निफिकेंट फायर वही चल रहा है। The frequency of structurally significant fire shall be developed by estimating the rate of fire per year relative to the number of building and the area of floor space for building of similar occupancy to the building being designed। अभी जैसे फ्रीक्वेंसी क्या है कि मान लीजिए एक 100 स्क्वायर किलोमीटर एरिया में है बिल्डिंग, तो 1000 बिल्डिंग है ना, तो वो आपने उसका एनालिसिस कर रहे हो जब फ्रीक्वेंसी ऑफ स्ट्रक्चरली सिग्निफिकेंट फायर शैल बी डेवलप बाय एस्टिमेटिंग द रेट ऑफ फायर पर ईयर। एक साल में इतनी फायर हुई 100 किलोमीटर के रेडियस एरिया में, पिछले साल इतनी हुई थी, 10 साल में उन्होंने हर एक फायर निकाली, उसको क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे फ्लोर एरिया से। तो इस तरीके से भी वो कैलकुलेशन करते हैं, लेकिन अपने यहाँ इस तरह का कोई है नहीं। हमारे यहाँ टोटल फायर है, आपको पता चलेगा साल में कोई दिल्ली फायर है तो वो आपको बोलेंगे 50,000 फायर कॉल आते हैं हमारे को, तो मुंबई वाले बोलेंगे 35,000 आते हैं। तो सब ऐसा गिनती करते हैं, लेकिन कौन से एरिया में किस क्लस्टर से आया और उसको किस हिसाब से डिवाइड करना है, फ्रीक्वेंसी कैसे लेंगे, बिल्डिंग फायर की फ्रीक्वेंसी कितनी है, हेल्थ केयर ऑक्यूपेंसी की फ्रीक्वेंसी कितनी है, वो हम लोग एनालिसिस नहीं करते हैं, या हो नहीं पाता है या करना नहीं चाहते हैं। ठीक है ना। फायर फ्रीक्वेंसी, द फ्रीक्वेंसी ऑफ स्ट्रक्चरली सिग्निफिकेंट फायर शैल बी डिटरमाइंड बाय मल्टीप्लाइंग द रेट ऑफ रिपोर्टेबल फायर पर ईयर। फ्रीक्वेंसी ऑफ, आप जैसे और सेफ्टी में, सेफ्टी के कितने लोग हैं आप अभी इसमें, सेफ्टी डिपार्टमेंट में कितने लोग काम करते हैं हमारी क्लास में जो है अभी? जिगर ही है, मैं करता हूँ। आप सीवीआरटी रेट निकालते हैं ना, एक्सीडेंट में कौन कौन सी रेट निकालते हैं? सर फैटालिटी रेट, सीवीआरिटी रेट और है ना? फ्रीक्वेंसी रेट और सीवीआरिटी रेट दोनों निकालते हैं एवरी मंथ। हाँ, तो वैसा ही फायर के लिए भी है। द फ्रीक्वेंसी ऑफ स्ट्रक्चरली सिग्निफिकेंट फायर shall be determined by multiplying the rate of reportable fire per year per floor area by the fraction of fire that are structurally significant in building with similar constructions। मतलब स्ट्रक्चरली सिग्निफिकेंट मतलब जिन फायर की वजह से स्ट्रक्चर के ऊपर इंपैक्ट आया होगा या वो प्रोपेगेशन होने के बाद स्ट्रक्चरल कंपोनेंट तक पहुंच गई होंगी, विद सिमिलर कंस्ट्रक्शन एंड प्रोटेक्शन सिस्टम एज प्रपोज्ड फॉर बिल्डिंग। और प्रोटेक्शन सिस्टम जैसा बिल्डिंग में प्रपोज किया है उस हिसाब से करते हैं। अभी नेक्स्ट आता है फार्मूला फॉर कैलकुलेटिंग फ्रीक्वेंसी ऑफ स्ट्रक्चरली सिग्निफिकेंट फायर। एक फार्मूला है फ्रीक्वेंसी ऑफ स्ट्रक्चरली सिग्निफिकेंट फायर, FSS shall be calculated as the product of fire frequency FP and the floor area AP
तो अभी आप कैलकुलेशन करना है आपको फ्रीक्वेंसी का, तो आप कर सकते हैं अगर ये डेटा है आपके पास तो। इसमें तो कोई डाउट नहीं है ना किसी को, सिंपल है तो फॉर्मूला। है डाउट? फ्रीक्वेंसी ऑफ स्ट्रक्चरली फायर सिग्निफिकेंट फायर पर ईयर, ठीक है, इज इक्वल टू एफ मतलब फ्रीक्वेंसी, फायर फ्रीक्वेंसी, फायर ऑब्लिक स्क्वायर ईयर, मीटर स्क्वायर ईयर, एक साल में कितना मीटर, जो हमने बात की थी आगे, और फ्लोर एरिया। इंडिया में इस तरह का कैलकुलेशन करते नहीं है, लेकिन आप कर सकते हैं जब आप इंटरनेशनल या जब ऑडिटर का आप कोर्स कर रहे हैं, तो आप ये कोर्स करने के बाद किसी भी तरह का कहीं से भी आपको जब टास्क आएगा, तो हो सकता है कोई मल्टीनेशनल कंपनी हो, वो फायर लोड कैलकुलेशन एनएफपी के हिसाब से कराएंगी, कोई इंडियन स्टैंडर्ड के हिसाब से करना है आपको, तो अलग अलग तरह की अलग अलग चीजें आपको आनी चाहिए। अभी जैसे ये अपने उस दिन भी टेबल पढ़ी थी, याद है टेबल? याद है? कितने लोगों को याद है? दोबारा? यस सर। तो इसको हम दोबारा नहीं पढ़ेंगे, है ना। अगर ऐसी बिल्डिंग है, फ्रैक्शन है, 1 का फ्रैक्शन, या आप परसेंटेज बोल सकते हैं, कि अगर मान लीजिए अनप्रोटेक्टेड नॉन कंबस्टिबल बिल्डिंग है, जिसमें नो डिटेक्शन, नो अलार्म, नो स्प्रिंकलर, तो 19% उसका सीवियरिटी फायर, मतलब फायर होने के चांसेस हैं। उसी तरीके से ये बढ़ता जाएगा, तो 7 हो गया, फिर 10 हो गया, और 5 हो गया। तो इस तरह की टेबल आपको आइडिया देती है, जैसे आपका बिजनेस ऑफिस के बारे में इस तरह का दिया है इन्होंने। अब ये नेक्स्ट आपका बोलता है रिलीजियस प्रॉपर्टी, जैसे आपके मंदिर है, मस्जिद है, गुरुद्वारा है, या और भी कोई ऐसे जहाँ पे आप रिलीजियस प्रेयर और ये प्रार्थना करने जाते हैं, तो उस तरह की फ्रिक्वेंसी ये दी गई है। अगला आपको दिया गया है ईटिंग एंड ड्रिंकिंग एस्टेब्लिशमेंट के बारे में, ऐसी टेबल दी गई है। नेक्स्ट टेबल है आपकी पब्लिक असेंबली के बारे में। तो ये एक जनरल आइडिया देती है कि इस तरह की जो आपकी बिल्डिंग ऑक्यूपेंसी है, उसमें अगर फायर अलार्म डिटेक्शन सिस्टम नहीं लगाया आपने, कोई अलार्म सिस्टम नहीं है, डिटेक्टर नहीं है, स्प्रिंकलर नहीं है, तो फायर का फ्रीक्वेंसी मान लीजिए 13% है। अगर आपने उसी जगह डिटेक्शन एंड नो अलार्म, डिटेक्शन एंड नो अलार्म प्रेजेंट, नो स्प्रिंकलर, फिर एक जगह आपने स्प्रिंकलर लगा दिया, नो डिटेक्शन नो अलार्म है, और लास्ट में आपने सब कुछ दे दिया, तो आप देखेंगे फ्रीक्वेंसी या कम हो जाती है, क्योंकि आपने फुली प्रोटेक्ट कर दिया। अर्ली स्टेज में डिटेक्शन कर लेगा, अलार्म कर देगा, अलार्म करने के बाद इवैक्यूएशन हो जाएगा, और साथ ही साथ वाटर प्रोटेक्शन सिस्टम आपका ऑटो में है, तो फायर को भी इंसिपिएंट स्टेज में, प्रारंभिक अवस्था में बुझा देगा। ठीक है। नेक्स्ट आपका बिल्डिंग है, एजुकेशनल बिल्डिंग का टेबल दिया गया है कि हेल्थ केयर का दिया है आपको। फिर स्टोर मर्केंटाइल बिल्डिंग की टेबल दी गई है इस तरीके से, जैसे ऊपर लिखा है, फॉर द स्टोर मर्केंटाइल बिल्डिंग द फ्रीक्वेंसी ऑफ फायर शैल बी टेकन 16 फायर पर मिलियन स्क्वायर मीटर पर ईयर। ठीक है। जैसे आप देखोगे पहले वाले में क्या दिया है, हेल्थ केयर में क्या दिया है, 16 फायर पर मिलियन पर स्क्वायर मीटर पर ईयर। तो ये एक डेटा आपको मिलता है एनएफपी में, बाकी जगह मिलता नहीं है कहीं। अब जैसे आप लिखा है प्लेस वेयर पीपल स्लीप अदर देन होम, घर के अलावा जहां लोग बाग सोते हैं, वहां पर आग लगने की फ्रीक्वेंसी क्या है, 43 फायर पर मिलियन स्क्वायर मीटर पर ईयर। अब ऐसी कौन सी जगह होती हैं जहां पे आप घर के अलावा जो सोने की जगह होती हैं, आपका होटल हो गया, डॉर्मेट्रीज हो गया, अपार्टमेंट हो गया, टेम्परेरी आपको शेल्टर हो गए, है ना। अब फायर लोड डेंसिटी पे जाने से पहले अगर आपको कुछ डाउट है, अभी तक हमने जो पढ़ा, तो आप पूछ सकते हैं। किसी को कोई डाउट है? सर वो जो फॉर्मूला थी उसमें फ्रीक्वेंसी मींस हाउ फ्रीक्वेंट इंसिडेंट्स रिपोर्टेड, फायर इंसिडेंट्स रिपोर्टेड विद इन द प्रीमाइसेस, वो कंसीडर करना पड़ेगा ना। यस, साल में आपको, एक साल में कितने फायर होती हैं, उसने मिलियन में लिया है, मिलियन मतलब 10 लाख, राइट सर। है ना। इतनी फायर स्टडी की होगी तो उसमें से पता चलेगा। जैसे मैंने आपको बताया था हाइड्रोकार्बन इंडस्ट्री में, अगर आप देखोगे फ्रीक्वेंसी ऑफ टैंक फायर, फुल सरफेस फायर, इनका दिया गया, किसी का दिया है 3 into
ईयर्स में है ये 3 इंटू 10⁻⁻⁶, किसी का दिया है 6 इंटू 10⁻⁻⁹। तो आप क्या सोचेंगे, -9 मतलब 3 इंटू 10⁻⁻⁶, 0.00000 करके पता नहीं कितना 3 है, तो फायर होती नहीं होगी। लेकिन उन्होंने स्टैटिस्टिक्स ऐसा लिया है कि मिलियन में गिनती किया है, मिलियन में 1 फायर होगी या 3 फायर होगी। आप क्या सोच रहे हो कि उसको इतना 0.00 करके आपने सोचा है, तो हो ही नहीं सकती। लेकिन ऐसा नहीं है, समझने का फर्क है बस, है ना, फ्रीक्वेंसी में। आपका जो सीवियरिटी रेट कितना अच्छा माना जाता है, इंसिडेंट स्टैटिस्टिक्स जो करते हैं, सीवियरिटी लेस देन 2.5 या समथिंग, इस तरह का बेंचमार्क होते हैं ना, तो Right, वो sir. इसलिए ऐसे ही बनाए जाते हैं। Right. फायर डेंसिटी, the heat energy that could be released per unit floor area of compartment by combustion of content of compartment and any combustible part of the building itself. फायर लोड डेंसिटी क्या है, फायर लोड डिवाइडेड बाय फ्लोर एरिया, सेम वही चीज है। द फायर लोड डेंसिटी इज द हीट विच कैन जनरेट ड्यूरिंग ए फायर पर यूनिट एरिया ऑफ फ्लोर। फायर लोड डेंसिटी, हमने भी वहां वही बोला था, फायर लोड डिवाइडेड बाय फ्लोर एरिया, इसने इसको पर यूनिट एरिया बोल दिया। मतलब एक स्क्वायर मीटर में जो कोई भी, मान लीजिए एक आपका कोई कंबस्टेबल मटेरियल है, वो जलता है, उससे हीट जितनी निकलती है फायर के दौरान पर यूनिट एरिया, वो फायर लोड डेंसिटी है, और इसको जूल में नापा जाता है। अब ये क्या है, ऑक्यूपेंसी बेस्ड फायर लोड डेंसिटी। फायर लोड डेंसिटी जैसे आपको मैंने वहां कैलकुलेशन दी थी ना, फायर लोड डेंसिटी की, एक क्वेश्चन, 2-3 न्यूमेरिकल क्वेश्चन थे, इतना केजी जल रहा है, इतने मिनट तक आग लगेगी, तो कैसे कैलकुलेट करोगे, याद है? तो द एवरेज फायर लोड डेंसिटी शैल बी सम ऑफ द एवरेज फिक्स फायर लोड डेंसिटी एंड एवरेज कंटेंट फायर लोड डेंसिटी, QF इज इक्वल टू QFF प्लस QFC। एफ का मतलब है फिक्स लोड और FC का मतलब एवरेज लोड। एवरेज फायर लोड डेंसिटी MJ में दिया है। तो सिमिलरली वही चीजें हैं, मोर और लेस, ज्यादा फर्क नहीं है, थोड़ा टर्मिनोलॉजी अलग है NFPA की, जो आपको थोड़ी समझनी पड़ेगी। अभी क्या है, कंटेंट फायर लोड डेंसिटी। कंटेंट मतलब जो पदार्थ है या कोई भी इन्वेंट्री है ना, या कोई ऑफिस बिल्डिंग में क्या चीजें रखी गई हैं, कंटेंट आपका फर्नीचर हो गया, चेयर हो गई, लैपटॉप, डेस्कटॉप, ये सब कंटेंट हो गए एक ऑफिस के। फॉर द ऑफिस और बिजनेस ऑक्यूपेंसीज द एवरेज कंटेंट फायर लोड शैल बी 600 mj per meter square floor area and the standard deviation shall be 500 floor area। 600 होना चाहिए, और डिविएशन है तो इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए वो, है ना। फिक्स फायर लोड डेंसिटी फॉर बिल्डिंग ऑफ नॉन कंबस्टेबल कंस्ट्रक्शन, द एवरेज फिक्स फायर लोड डेंसिटी शैल बी 130 mj per meter square and standard deviation shall be 40 mj per meter square। मतलब डिविएशन भी उन्होंने डिफाइन किया है कि किस तरह की ऑक्यूपेंसी में कितना डिविएशन हो सकता है, उससे ज्यादा डिविएशन नहीं होना चाहिए। अभी आते हैं हम सर्वे मेथड। सर ये अगर वो उससे ज्यादा अगर सपोज है तो कुछ, तो फायर लोड कम करना पड़ेगा। अगर फायर लोड कम नहीं कर सकते तो लेवल ऑफ प्रोटेक्शन बढ़ाना पड़ेगा, ज्यादा करना पड़ेगा। हाँ, कोई चीजें हो सकती हैं। हाँ हाँ हाँ। नेक्स्ट है फायर लोड डेंसिटी। The fire load density shall be consist of total fire load divided by floor area of the compartment। फिर फायर लोड नीचे आपको, जैसे हमने वहां कैलकुलेट किया था, सर्वे बेस में भी यही है। जैसे आपने वहां कागज लिया, कितना किलो है, कैलोरीफिक वैल्यू कितना है, मल्टीप्लाई किया, फिर उसको फ्लोर एरिया से डिवाइड किया, तो यहाँ भी Q इज इक्वल टू टोटल फायर लोड इन कंपार्टमेंट MJ, और फिर नीचे आपको पोर्शन ऑफ द कंटेंट ऑफ द बिल्डिंग कंपार्टमेंट दैट इज कंबस्टेबल, मास ऑफ आइटम, कैलोरीफिक वैल्यू, सेम वही चीज है, और सिग्मा लगा दिया है, जैसे अपने वहां भी सिग्मा ही था, आपने जब हमने डिस्कस किया था, तो इसमें कोई ज्यादा परिवर्तन नहीं है इस वाली डेफिनेशन में। कैलकुलेशन ऑफ फायर लोड डेंसिटी सिमिलर वही है। टोटल आपका Q
डबल एपोस्ट्रोफी जो अपना कैलकुलेशन ऑफ फायर लोड डेंसिटी Q इज इक्वल टू Q अपॉन AF फ्लोर एरिया ऑफ फायर कंपार्टमेंट, जो कंपार्टमेंट का आप कर रहे हैं उसका फ्लोर एरिया, टोटल Q फायर लोड है टोटल कंपार्टमेंट का। सेम वही चीज है, डेंसिटी जो हमारे वहां थी एनपीसी में, यहाँ भी वही है, केवल शब्दों का हेर फेर है और सिंबल अलग मिलेंगे आपको। आप सोच रहे होंगे कि ये जब मैंने एनबीसी पढ़ा दिया तो एनएफपी क्यों पढ़ा रहा हूं मैं आपको, सोच रहा है कोई ऐसा सोच रहा है क्या कि जब सब कुछ ही एक जैसा है तो फिर क्यों पढ़ा रहे हैं हमको? क्योंकि जो एनएफपीए के हिसाब से आप जहां भी कुछ भी फायर लोड कैलकुलेशन करेंगे तो आपको टर्मिनोलॉजी फार्मूले सारे इस स्टैंडर्ड से ही रेफर करने पड़ेंगे। आप ऐसा नहीं है कि बोल देंगे कि एनबीसी पार्ट 4 2016 के हिसाब से मैंने फायर लोड दे दिया, वो तो बोल रहा है मुझे एनएफपीए के हिसाब से दो। आपकी पूरी रिपोर्ट में ही सारी अलग अलग कहानी मिलेगी एनबीसी के हिसाब से, उसने मांगा एनएफपीए के हिसाब से, है ना। नेक्स्ट है डॉक्यूमेंटेड फायर लोड। द डिजाइन बेसिस फॉर द फायर लोड डिटरमाइंड शैल बी डॉक्यूमेंटेड इन ए रिपोर्ट that is maintained by the building owner and provided by the AHJ। इंटरनेशनल स्टैंडर्ड में AHJ शब्द का इस्तेमाल होता है, हमारे यहाँ होता है कॉम्पिटेंट अथॉरिटी, वो बोलते हैं अथॉरिटी हैविंग जुडिक्शन, मतलब जिसके इसमें एरिया में जो उसका इंचार्ज है या जिसके जुडिक्शन में ये आता है उसको AHJ बोलते हैं। The building owner shall be responsible for confirming that the anticipated fire load densities will not exceed the value used for design as documented, है ना। बिल्डिंग ओनर को ये सुनिश्चित करना चाहिए, ये उसकी जिम्मेदारी है कि जो फायर लोड डेंसिटी आपको डॉक्यूमेंट में बताई गई है उससे ना बढ़ाए ज्यादा जनरली। लेकिन ऐसा होता नहीं है, किसी बिल्डर ने बिल्डिंग बनाई, किसी को बेच दी, खरीदने वाले के मन में लगा कि इंटीरियर मेरे को अच्छा नहीं लग रहा है इसका, या इंटीरियर तो कुछ दिया ही नहीं है इसने, मुझे केवल 4 दीवार दे दी। उसने पूरा जो आपकी दीवार है उसको बढ़िया सा सागवान की लकड़ी से या वुड टिक से बिल्कुल वुडन बना दिया, उसमें ड्राइंग और एक कटिंग वटिंग आर्टिस्टिक लुक बना के वार्निश भी कर दी, है ना। तो अब क्या हो गया, क्या फर्क पड़ा उससे, बता सकता है कोई? वो लोड बढ़ गया ना सर, फायर लोड। हाँ, फायर लोड बढ़ा दिया उसने, ठीक है ना। चेंज ऑफ ऑक्यूपेंसी, if there is a change in occupancy, alteration, renovation and the fire load in the new occupancy or portion of the building that has been altered or renovated exceed the fire load that was originally developed, then the fire resistance of the building shall be analyzed to evaluate if the existing fire protection meet the design objective for the new occupancy or the portion of the building that has been altered or renovated। इसमें तो कोई समझाने की बात नहीं है ना, है? समझ गए सभी इस बात को? तो आप समझा दीजिए मुझे, अगर समझ गए तो बताइए, कौन बताएगा? क्या बात है, क्लास में मजा नहीं आ रहा है ना? मुझे भी मजा नहीं आ रहा पढ़ाने में। तो सर वो जो पहले मतलब वो जो बिल्डिंग के उसके बाद में उन्होंने कुछ चेंजेस किया, कुछ ऑल्ट्रेशन किया, तो उसके बाद में तो ये जो है वो जो फायर लोड कैलकुलेशन वो फिर वैलिड नहीं रहेगा ना। उसका फायर रेजिस्टेंस भी बिल्डिंग का आपको उसी हिसाब से एनालाइज करना पड़ेगा। उन्होंने जो बिल्डिंग बनाया होगा तो पहले जो उन्होंने कंस्ट्रक्शन मटेरियल जो यूज किया है उसके हिसाब से ही वो डिजाइन किया है। रेजिस्टेंस और ये सब जो फायर जो अपना जो 1 आवर 4 आवर 4 आवर 2 आवर 3 आवर का जो कैटेगरी है तो वो भी उस हिसाब से उन्होंने डिजाइन किया होगा। अगर हम लोग इंटीरियर बढ़ाते जाएंगे, उसमें वुड और ये सब डालते जाएंगे तो फायर लोड भी बढ़ जाएगा, तो उसका इंटेंसिटी जो है मतलब वो इवैल्यूएट करना पड़ेगा। हाँ, वापस करना पड़ेगा। In short, if any change in occupancy
हाँ, fire load has to be reassessed. फायर लोड तो रीअसेस करना ही है, साथ ही साथ उसका रेजिस्टेंस भी रीअसेस करना है। स्ट्रक्चरल रेजिस्टेंस कितना था, टाइप 2 था, और आपने काम कर दिया कुछ ऐसा कि अभी वो टाइप 3 में चला गया या टाइप 4 में चला गया। वो कैसे चला जाएगा? वो आपने हाइड्रोकार्बन स्टोरेज कर दिया अंदर अपने घर में ही, केरोसिन पेट्रोल का बिजनेस चालू कर दिया घर में ही, तो हाइड्रोकार्बन आ गया। मैंने आपको बताया था हाइड्रोकार्बन फायर जो स्ट्रक्चर को डैमेज करती है 1 घंटे में, और लकड़ी कागज कोयला ये जो है 4 घंटे में करते हैं, है ना। तो वैसा ही आपने अंदर इतने फैब्रिक ला दिए, पॉलिस्टर, पेट्रोकेमिकल, स्टोरेज, कॉटन, ये सिंथेटिक पॉलिस्टर, इतना सारा अंदर डंप कर दिया आपने। रहने के लिए तो मकान बनाया था, उसको आपने गोदाम बना दिया अपना सिंथेटिक का। तो फिर तो वो इतना देर तो रेजिस्टेंस नहीं कर सकता ना, जिस हिसाब से सोचा था आपने। आपने घर बनाया था टाइप 3 होना चाहिए, भाई ठीक है मैं तो नॉर्मल रखी, लेकिन आपने ऐसा कर दिया कि उसकी कैटेगरी टाइप 2 में चली गई। जल्दी ही स्ट्रक्चरल कंपोनेंट उसके कोलैप्स हो जाएंगे। If the objective are no longer meet, then modification of the existing building protection shall be made as necessary so that building meet its fire resistance objective. मान लीजिए आपने बिल्डिंग में सब कुछ चेंज कर दिया, लेकिन आपकी मजबूरी है या आप उसको एज इट इज ही रखना चाहते हैं, तो फिर दूसरा ऑप्शन क्या है? आपको लेवल ऑफ प्रोटेक्शन बढ़ा के आप कर सकते हैं। आप लेवल ऑफ प्रोटेक्शन बढ़ा दीजिए, स्प्रिंकलर लगा दीजिए, ऑटोमेटिक होना चाहिए, डिटेक्शन सिस्टम होना चाहिए, अलर्ट आना चाहिए कोई भी अलार्म आया तो, है ना। वो भी एक ऑप्शन है। जैसे मैंने आपको बताया था मीन्स ऑफ इग्रेस की जो डिस्टेंस है 50% आप और बढ़ा सकते हैं अगर ऑटोमेटिक स्प्रिंकलर से प्रोटेक्ट है वो, तो है ना। रिपेयर शैल नॉट बी रीएनालाइज। रिपेयर में रीएनालाइज करने की जरूरत नहीं है। प्लस्तर गिर गया, दीवार टूट गई, खिड़की टूट गई, तो ठीक है, उसमें ज्यादा इतना जरूरत नहीं है। नॉर्मल रिव्यू, formal review. A formal review of the fire load shall be undertaken, documented and provided to the AHJ at least once in a 5 year. अगर आपने सुना होगा स्टेबिलिटी, सुना है बिल्डिंग का स्टेबिलिटी सर्टिफिकेट की जरूरत पड़ती है, किसी ने सुना है शब्द? Yes, sir. Yes, sir. स्टेबिलिटी सर्टिफिकेट का वही काम है कि बिल्डिंग आपकी कितनी मजबूत है, भूकंप, आंधी, तूफान, या उसका जो मटेरियल है कितना डेटोरेट हो गया है पिछले 5 साल 10 साल में। हर 5 साल में आपको बिल्डिंग का असेसमेंट कराना चाहिए। इसी प्रकार ये क्या बोलता है, हर 5 साल में आपको फायर लोड रिकैलकुलेट करना चाहिए। In order to assess the quality of solid fuel, coal, the following 2 type of analysis are made. अब क्या है क्वालिटी, जो से आप बात कर रहे थे कोयले की, तो कोयले की क्वालिटी कैसे मेजर करते हैं? एक होता है प्रॉक्सिमेट एनालिसिस होता है, एक होता है अल्टीमेट एनालिसिस। प्रॉक्सिमेट एनालिसिस इट इंक्लूड्स द डिटर्मिनेशन ऑफ मॉइस्चर, जो मैंने अभी आपसे बात की थी थोड़ी देर पहले, किसी ने कोयले की बात की थी ना, तो मैंने बोला था मॉइस्चर भी एक चीज होती है कुछ। मॉइस्चर, वॉलेटाइल मैटर, ऐश, फिक्स कार्बन, ये कोई भी उसकी क्वालिटी आप देखेंगे तो क्वालिटी चेक में किया जाता है। उसमें मॉइस्चर कितना है, उसकी MSDS होती है, जिसको आजकल सेफ्टी डेटा शीट SDS बोलते हैं। कोयला जो भी प्रकार का है, इंडोनेशिया से आ रहा है कोयला, उसका नाम क्या है, उसमें अंदर आपको लिखा होगा इतना मॉइस्चर इसको मेंटेन करना चाहिए। वॉलेटाइल मैटर उसमें कौन कौन से, ऐश कितना % है, फिक्स कार्बन कितना है उसमें, कार्बन फिक्स ज्यादा होगा तो ज्यादा क्लेरिफिक एनर्जी होगी, आपको फ्यूल इफिशियंसी ज्यादा मिलेगी, और आग भी लगेगी तो बहुत बढ़िया लगेगी, बुझाने में ज्यादा काम करना पड़ेगा। लेकिन प्रोटेक्शन में कोयला चाहिए अच्छी क्वालिटी का, डस्ट कम होगी तो वैसे भी आग नहीं लगेगी उसमें, मॉइस्चर आप मेंटेन करके रखेंगे तो भी आग नहीं लगेगी। This gives quick and valuable information regarding the commercial classification and determination of suitability for a particular industrial use. इसका पर्पस क्या है एनालिसिस का, कि कोई भी आपको कोयला 100 रुपए किलो में बेच रहा है, कोई 200 में बेच रहा है, कोई 150 में, कोई 75 में। आप तो बोलोगे L1 पे 75 ले लो भाई,
लेकिन आपने उसका कोयले का आपको क्या चाहिए, आपका ऑपरेशन का रिक्वायरमेंट क्या है, वो आपने देखा नहीं, सैंपल किया नहीं, एनालिसिस किया नहीं, तो अल्टीमेटली नुकसान ही होना है। इक्विपमेंट को भी होगा, फायर रिस्क भी क्रिएट होगा, प्रोडक्शन में भी होगा, और बाद में पैसे का भी तकलीफ होगा। अल्टीमेट एनालिसिस इफ इंक्लूड द डिटर्मिनेशन ऑफ कार्बन। पहला वाला तो आप समझ लीजिए, प्रॉक्सीमेट्री एनालिसिस में क्या क्या देख रहे हैं, मॉइस्चर, वॉलेटाइल मैटर, ऐश, फिक्स कार्बन, ठीक है। अल्टीमेट एनालिसिस में क्या है, आप कह सकते हैं ऊपर वाला जो पार्ट है ना, वो फिजिकल कंडीशन देख रहा है हम एक तरीके से, नीचे वाला पार्ट है वो केमिकल कंपोजिशन देख रहे हैं कि केमिकल कंपोजिशन क्या है उसके, कार्बन कितना परसेंट है, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, सल्फर एंड ऑक्सीजन इन कोल, since it is used for the determination of element present in coal. If is also called elemental analysis, कि उसके कौन कौन से एलिमेंट हैं। This analysis give exact results and are useful in calculating calorific value of coal using डुलोंग फॉर्मूला, ठीक है। ये चीजें आपको डुलोंग फार्मूला आएगा आगे, उसमें बेनिफिट होता है अगर आपने प्रॉक्सीमेट्री एनालिसिस किया है, अल्टीमेट एनालिसिस किया है, तो फाइनली आउटकम आपका मॉइस्चर हो गया। परसेंटेज ऑफ मॉइस्चर कैसे निकालते हैं, about 1 gram of finely powdered air dried coal sample is weighed in a cubicle. The cubicle is placed inside an electric hot air oven. 105 to 110 degree centigrade temperature maintained. The crucible is allowed to remain in oven for 1 hour and then taken out, cooled in a desiccator and weighed. उसमें क्या करते हैं, ओवन में रखते हैं उसको, इतना टेम्परेचर होता है 1 ग्राम कोल को, और उसका फिर वेट किया जाता है। तो इतने टेम्परेचर पे होने पे क्या होगा कि वो उसमें ज्यादातर कंपोनेंट है, वो वॉलेटाइल मटेरियल है या बाकी चीजें हैं, वो क्या बर्नट आउट हो जाएगा। जब उसमें से बर्नट आउट हो गया, केमिकल बॉन्डिंग ब्रेक हो गई, एनर्जी बाहर निकल गई, उसके बाद जो बचेगा है ना, लॉस इन वेट, तो उसका क्या होगा, कैलोरी बर्न कर ली उसने, कैलोरी बर्न करने के बाद वेट लॉस हो गया। लॉस इन वेट इज रिपोर्टेड एज मॉइस्चर ऑन परसेंटेज बेसिस। तो हमने क्या किया, फार्मूला लगा दिया, लॉस इन वेट ऑफ कोल टेकन, 1 ग्राम यहाँ आएगा, ऊपर जो लास्ट में हमने जो 110 तक किया उसके बाद उसको निकाल के फिर देखा, तो ये आपका कैलकुलेशन से मॉइस्चर परसेंटेज आ जाता है। लैब में जनरली करते हैं इसको। Volatile matter, the dried sample of coal left in a crucible in one is then covered with a lid and placed an electrical furnace, maintain temperatures 925 plus minus 20. The crucible is taken out of the oven after 7 minutes of heating. The crucible is cooled first in air, then inside a desiccator and wait again. उसको क्या किया आपने, 925 तक क्रूसिबल को गर्म किया, 7 मिनट उसको 7 मिनट तक गर्म किया, और क्रूसिबल को आपने बाहर निकाल लिया और नॉर्मल एयर में रख दिया, और उसका ठंडा होने के बाद उसका फिर से वजन किया, ठीक है। लॉस इन वेट इज रिपोर्टेड एज वॉलेटाइल मैटर ऑन परसेंटेज बेसिस। तो उसमें वॉलेटाइल ही लॉस होगा ना, क्योंकि जितने भी अंदर केमिकल बॉन्डिंग एनर्जी था आपने गर्म किया, गर्म करने के बाद बॉन्ड ब्रेक हुए, ब्रेक होने के बाद एनर्जी निकली, और वो उसका एनर्जी लॉस जो है वो आपका वॉलेटाइल मैटर लॉस में गिना जाएगा। फिर ये देखिए, लॉस इन वेट ड्यू टू रिमूवल ऑफ वॉलेटिक मैटर। वॉलेटिक मैटर मतलब वेपर या इस तरह के जो पदार्थ, उसको गर्म करेंगे तो सबसे पहले जो पार्ट बाहर जो लाइटर होंगे वो बाहर निकल जाएंगे, जो बचा हुआ है उसको डिवाइड करके 100 से ही आ जाएगा। ऐश,
अब ऐश क्या है? द रेजिडुअल कोल इन ए क्रूसिबल इज देन हीटेड विदाउट लिड। अब उसके ऊपर वो कवर नहीं लगाया और उसको गर्म किया फर्नेस में 700 से ±50 पे आधे घंटे तक। द क्रूसिबल इज देन टेकन आउट। क्रूसिबल को बाहर निकाल लिया, ठंडा कर लिया हवा में, फिर उसको डिसिसेटर में उसका फिर वेट किया, तो ऐश का पता चल जाएगा। हीटिंग, कूलिंग एंड वेइंग इज रिपीटेड टिल ए कांस्टेंट वेट इज ऑब्टेन। ये लगातार चलता रहता है जब तक कि कांस्टेंट वेट नहीं निकलता। जैसे हम आप प्रैक्टिकल करते थे कई बार, जो एसिड बेस को मिलाने के बाद ये कलर आना चाहिए, इतना आना चाहिए, नहीं आता है तो उसको कंटिन्यूसली हम कई सैंपल लेते थे, तो वही बात ये बोल रहा है। परसेंटेज ऑफ ऐश, वेट ऑफ ऐश लेफ्ट, वेट ऑफ कोल टेकन, फिक्स कार्बन, जो हमने सेकंड प्रॉपर्टी पढ़ी थी ना, अल्टीमेट वाला जो टेस्ट है वो। फिक्स कार्बन में क्या है? परसेंटेज ऑफ फिक्स कार्बन इज इक्वल टू 100 माइनस परसेंटेज ऑफ मॉइस्चर प्लस वॉलेटाइल मैटर प्लस ऐश। अगर आपको फिक्स कार्बन पता करना है तो उसको 100 में से माइनस क्या क्या कर देना है, उसका मॉइस्चर कितना उड़ा दिया आपने, वॉलेटाइल मैटर कितने उड़ा दिए और ऐश कितनी उड़ गई इसमें से। ठीक है? हाई परसेंटेज ऑफ फिक्स कार्बन इज डिजायरेबल। कार्बन मैंने पहले ही बताया था, जितना अच्छा हाई परसेंटेज होगा। कार्बन कोयला कितने प्रकार का होता है, पढ़ा है आपने बचपन में, याद है किसी को? कोयले के प्रकार बता सकता है कोई? कुछ पहले पता था 2 प्रकार के थे। 4 प्रकार के थे, 4। अच्छा, वो कौन कौन से थे? पीट, लिग्नाइट, एंथ्रेसाइट, ये पढ़े थे ना? एंथ्रेसाइट में सबसे ज्यादा कार्बन रहता है, वो पत्थर की तरह होता है, तो ज्यादा। विटामिन भी होता है सर, विटामिन एस। हाँ, विटामिन बी। ठीक है ना? तो ये चीजें हमने सब पढ़ ली है, दोबारा एक बार रिवीजन करना पड़ता है, बार बार भूल जाते हैं हम। तो फायर में यही काम है, आपको समय समय पे अपने दिमाग को जोड़ देते रहना है, उसको काम पे लगा के रखना है। मॉइस्चर, मॉइस्चर लोअर्स द इफेक्टिव कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ कोल। Moreover, it quenches the fire in furnace. Hence, lesser the moisture content, better the quality of coal as a fuel. जितना कम moisture रहेगा उतना ज्यादा quality fuel अच्छा कहलाएगा वो। However, presence of moisture up to 10% produce a more uniform fuel bed and less of fly ash. 10% moisture रहेगा तो आपको यूनिफॉर्म फ्यूल बेड मिलेगा और फ्लाई ऐश कम मिलेगा। वॉलेटाइल मैटर, वो भी वही है कहानी। कार्बन एंड हाइड्रोजन, अब उसमें कंटेंट का ये भी है कि कार्बन और हाइड्रोजन कितना होगा, कितना आपको चाहिए, आपके इक्विपमेंट का क्या नीड है, तो ये सारे एनालिसिस उसी काम में जनरली आते हैं। ये भी वैसे ही आप कार्बन कंटेंट भी निकाल सकते हैं जैसे हमने पहले निकाला है, हाइड्रोजन कंटेंट निकाल सकते हैं आप, है ना? इंक्रीज द वेट ऑफ कैल्शियम क्लोराइड ट्यूब इंटू 2 इंटू 100 डिवाइडेड बाय वेट ऑफ कोल सैंपल टेकन इंटू 18। तो ये कुछ फार्मूले हैं, इनको आप याद कर सकते हैं। नाइट्रोजन का भी आप निकाल सकते हैं। अबाउट 1 ग्राम ऑफ एक्यूरेटली weighted powder coal is heated with concentration of H2SO4 among with the K2SO4 catalyst in a long necked flask. After the solution become clear, it is treated with excess of KOH and the liberated ammonia is distilled over and absorbed in a known volume of standard acid solution. The unused acid is then determined by the back titration with standard NOH solution. From the volume of acid used by ammonia liberated, the percentage of N in coal is calculated as follows. केमिकल रिएक्शन का पूरा उसने बता दिया आपको, क्या क्या डालना है, कैसे डालना है, क्या करना है, लास्ट में फिर फार्मूले में रख देना है। सल्फर कंटेंट भी ऐसे निकालेंगे।
ऐश कंटेंट भी अच्छी निकलेंगी। जैसे हमने 100 में से माइनस करके वो किया था ना, कार्बन निकाला था पहले वाले फार्मूले में, ऐसे ऑक्सीजन निकालते हैं तो 100 में से माइनस कार्बन कर दिया, कार्बन, हाइड्रोजन, सल्फर, नाइट्रोजन और ऐश, इन सबको माइनस कर लेंगे तो आपके पास ऑक्सीजन, परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन आ जाएगी इन कोल में। सिग्निफिकेंस ऑफ अल्टीमेट एनालिसिस, carbon and hydrogen, greater the percentage of carbon and hydrogen, better is the coal in quality। आपका कार्बन और हाइड्रोजन का कंपोजिशन जितना ज्यादा होगा, इसका मतलब कोल क्वालिटी बहुत अच्छी है और इसकी क्लोरोफिक वैल्यू भी बहुत अच्छी है। However, hydrogen is mostly associated with the volatile matter and hence it affect the use to which coal is put। किस तरह का कोल कहाँ यूज होगा, कैसा प्रोसेस है, कितना आपको कार्बन कंटेंट चाहिए, हाइड्रोजन कंटेंट चाहिए, है ना। ऑल्सो हायर परसेंटेज ऑफ कार्बन इन ए कोल रिड्यूसेस द साइज ऑफ कंबशन चैम्बर रिक्वायर्ड। तो इसका बेनिफिट क्या मिल गया आपको, हायर परसेंटेज ऑफ कार्बन जितने कोल में होगा उतना आपको छोटा चैम्बर चाहिए उसको जलाने के लिए, मतलब फर्नेस का साइज कम हो गया। कार्बन कंटेंट अगर आप ज्यादा लेंगे, क्वालिटी आपने अच्छी रखी तो वो चैम्बर का साइज कम हो गया, आपने ऑपरेशनल कॉस्ट कम हो गई, मेंटेनेंस कॉस्ट कम हो गई, है ना, प्रोडक्टिविटी बढ़ गई। द अमाउंट ऑफ कार्बन द मेजर कंबस्टेबल, कुछ स्पेलिंग गड़बड़ हुआ है इसमें, कंसिस्टेंट ऑफ कोल depend on the type of coal and it is percentage increase with rank from lignite to anthracite, है ना। तो हमने पढ़ा था पीट, लिग्नाइट, बिट्टू, कौन कौन से पढ़े थे हमने, 4। तो अब ये क्या कह रहा है कि कोल एंड इट्स परसेंटेज इंक्रीजेस विथ रैंक, लिग्नाइट में कम होता है, फिर आगे जाते जाते एंथ्रेसाइट में सबसे ज्यादा कोल मिलता है। Thus, percentage of carbon form the basis of classification of coal। नाइट्रोजन के बारे में बात करते हैं अभी। Nitrogen has no calorific value, hence it is present in coal is undesirable। Thus, a good quality coal should have a very little nitrogen। बहुत ही कम नाइट्रोजन होनी चाहिए, ये अच्छी नहीं मानी जाती है कोल की प्रॉपर्टी में, ठीक है। अब सिग्निफिकेंट अल्टीमेट एनालिसिस वो सेम ही है, सल्फर, ऑक्सीजन जो हमने पढ़ा था, रिपीट हो गया वो। ये कैलकुलेशन है कि हमने डुलोंग फॉर्मूला जो हमने पहले क्लोरोफिक वैल्यू निकाली, हाई क्लोरोफिक वैल्यू HCV जो हमने निकाली थी, फिर आपने LCV निकाली थी, वो है। अब ये HCV और LCV का कंपैरिजन दिया गया है। HCV हाई क्लोरोफिक वैल्यू क्या है, ए amount of heat evolved when a unit weight of the fuel is completely burnt out and the product of the combustion cooled to the normal condition with water vapor condense in as a result। तो ये कंपैरेटिव दिया है, उसका इतना ज्यादा सिग्निफिकेंट नहीं है ये, लेकिन आपको जानने के लिए HCV क्या होता है, LCV क्या होता है, तो आप इसको पढ़ सकते हैं, ठीक है। बॉम्ब क्लोरोमीटर, ये एक थोड़ा आपका यूनिट 5 में एक दिया है, तो उसको थोड़ा सा हम जानेंगे क्या होता है ये। The chlorometer used to determine the energy change during a reaction accurately is known as a bomb chlorometer। अब कोई भी केमिकल रिएक्शन हो रहा है आपका, तो उस केमिकल रिएक्शन के दौरान एनर्जी चेंज कितना हो रहा है वो कैसे नापेंगे आप, तो उसके लिए एक इक्विपमेंट है जिसे हम बॉम्ब क्लोरोमीटर कहते हैं। द मॉडर्न बॉम्ब क्लोरोमीटर इज a development of original chlorometer of Ben Berthelot, साइंटिस्ट का नाम है। The modern bomb chlorometer is made of corrosion resistant steel। corrosion resistant steel के होते हैं, आपको देखने को मिलेंगे अगर LPG प्लांट और कहीं भी आप किसी प्लांट में देखेंगे, सैंपल लेने के लिए कैप्सूल जैसा लेके जाते हैं, SS का बना हुआ होता है, वही बॉम्ब क्लोरोमीटर रहता है। फिर लैब में ले जाके उसको एनालाइजर पे लगा देते हैं
और उसके कंपोनेंट और जो भी उनको चीजें चेक करनी होती है वो कर लेते हैं. The bomb calorimeter is an instrument used to measure the heat of reaction at fixed volume and the measure heat which is called the change of internal energy. In chemistry, the change of heat of a reaction can be measured at fixed pressure or volume. ठीक है. The bomb calorimeter is a type of constant volume calorimeter used to measure the combustion heat of oxygen burnable sample. 4 critical parts are needed in a bomb calorimeter. आपका क्वेश्चन आ सकता है बॉम्ब क्लोरोमीटर को डिफाइन करो, या आ सकता है कि उसके कौन से 4 पार्ट ऐसे हैं. तो the bomb calorimeter is a laboratory instrument used to measure the amount of sample, combustion heat or heat power when excess oxygen combustion occurs. The purpose of this research is to determine the effect of using bomb calorimeter on the availability of physics student to process science. Influences involve the efficacy of using the devices and learning how to develop the ability of scientific method of student before and after using the material. If the heat of the capacity of calorimeter CCl of to the calorimeter is known, then one determine the heat generated by a only needs to note the change in temperature process. Calorimeter is widely used in present day laboratory में यूज किया जाता है. Construction of bomb calorimeter. The bomb calorimeter is used to determine the calorific value of solid and liquid fuels. It consists of strong steel shell known as bomb. पहले ही हम बता चुके हैं SS का रहता है generally. It contained of a base which support the platinum crucible and is screwed to the body. आपके किसी को देखने का मौका मिलता है तो आप देखिएगा. जनरली ये बॉम्ब लैब है ना आपके वहां पे, लैब टेस्ट या एनालिसिस होते हैं, तो लैब में विजिट कीजिएगा आपके इंडस्ट्रीज में, तो शायद आपको वहां देखने को मिल जाए. द टॉप ऑफ द बॉम्ब कैरीज एन ऑक्सीजन सप्लाई कनेक्शन एंड ए वाल टू रिलीज द प्रोडक्ट. एक इनलेट होता है, एक आउटलेट होता है. 1 gram of powder sample coal is taken for the test and the calorimeter is filled with 200 cubic centimeter of water. अभी आपको एक वीडियो भी मैं दिखाऊंगा, तो अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो वीडियो देख के भी आपको समझ में आ जाएगा कि ये बॉम्ब क्लोरोमीटर क्या होता है, अगर वीडियो चला और यहाँ डिस्प्ले हो पाया तो. ठीक है, तो बॉम्ब क्लोरोमीटर का ये देखिए, बॉम्ब क्लोरोमीटर का फिगर दिया गया है. यहाँ पे एक ये इलेक्ट्रिकल कॉइल है, यहाँ थर्मामीटर लगा हुआ है, यहाँ पे स्टीरियर है जो पानी आपका है उसको घुमा के कंटिन्यूसली उसको इक्विलिब्रियम टेम्परेचर करता रहता है. ठीक है ना. ये देखिए, अभी देखते हैं, अगर वीडियो चल गया तो आपको समझ में आ जाएगा सब. वीडियो दिख रहा है? Pulverized is the fuel used predominantly in वीडियो आपको दिखाई दे रहा है? जी सर. दिख रहा है ना, तो इसको सर ध्यान फुल से स्क्रीन देखिए. करिए. हाँ, वो मैं कर देता हूँ, ध्यान से देखिएगा. तो इतना जो हमने पढ़ा है ना, अगर समझ में नहीं आ रहा तो आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा. ठीक है, जी सर. चलिए. फुल स्क्रीन कहाँ है इसका? Pulverized coal is the fuel used predominantly in reheating furnaces in the steel re-rolling mill sector. Higher the कुछ फुल स्क्रीन में प्रॉब्लम calorific हो रहा है. value of pulverized coal, lower is the fuel consumption in the furnace. The calorific value
एक मिनट, Pulverized coal is the fuel used predominantly. मैं YouTube के लिंक से देखता हूँ, फुल स्क्रीन शायद उसमें हो जाएगा। अभी दिखाई दे रहा है? यस सर, Yes, sir. अभी Yes, sir. चलाओ, सब दिखेगा, अभी दिखेगा। हाँ, अभी दिख रहा है, बढ़िया। बढ़िया। आवाज को क्या हो गया? Is in the steel re-rolling mill sector. Pulverized coal is the fuel used predominantly in reheating furnaces in the steel re-rolling mill sector. Higher the calorific value of pulverized coal, lower is the fuel consumption in the furnace. The calorific value of any fuel can be determined in a laboratory using a bomb calorimeter. Generally, the gross calorific value varies between 4800 and 7200 kilocalories per kilogram. The major parts of a bomb calorimeter are an outer copper shell called calorimeter and the inner shell made of stainless steel where the fuel burns called bomb. Two fuse wires made of magnesium fixed to a 6-volt battery are used to ignite the fuel. A channel for the supply of oxygen is placed to help the burning of fuel. The steel shell or the bomb is enclosed inside the copper calorimeter. The calorimeter is closed from top using a copper lid. The space between the calorimeter and the bomb is filled with water. A mechanical stirrer is placed and on the opposite side of the stirrer, a thermometer is installed. The calorimeter is enclosed inside a capsule with an air jacket between the inner shell and the calorimeter and a water jacket between the inner and outer shells. During the process, fuel of a known quantity is placed inside the bomb and ignited. The bomb is filled with excess oxygen at 25 to 30 atmospheric pressure. The heat generated in the process is dissipated to water present in the calorimeter chamber. The mechanical stirrer is used to maintain a uniform temperature of the water. The amount of temperature rise in the water is noted using the Beckman thermometer. The gross calorific value or GCV of the fuel is achieved by the following mathematical process. Add the mass of water present and the water equivalent of the instrument. Water equivalent is an assumed value which assumes that the bomb is surrounded only by water, and it also assumes the amount of heat absorbed by water in this condition. Subtract the maximum temperature of water from the initial temperature of water. Heat absorbed by the apparatus would be determined by multiplying the results. Heat absorbed is equal to heat liberated by fuel. Gross calorific value or L is determined by dividing the result by the amount of fuel taken in the bomb crucible. Some subtractions are done in the above formulae. The heat dissipated from the acidic reactions, the calorific value of the cotton, the fuse wire used to ignite the fuel. At last, the rate at which the metal cools needs to be added. Thus, the formula looks like this, and the net calorific value NCV equals GCV minus 0.09 H into 587 calories per gram, where H is equal to the percentage of hydrogen in the fuel. The advantages of in-house test facility for gross calorific value are actual GCV of the fuel can be determined and cross-checked with the test report provided by the supplier. Poor quality of fuel can be rejected. The amount of air required for combustion can be pre-calculated theoretically based on GCV of fuel. Specific fuel consumption can be reduced substantially using good quality of coal. A bomb calorimeter can be effectively used for determining GCV for effectively any solid or liquid fuel. Normally, bomb calorimeter of this size would cost around 50 to 70,000 rupees.
तो अभी This आपको video is to explain how to use an oxygen bomb calorimeter. This is a bomb calorimeter here. This is actually the bomb head inside, and we'll be explaining how that works. A bomb calorimeter has a charge of something that will be burned in an oxygen atmosphere. We place it inside a calorimeter. Sir, please unmute yourself, sir. Hello, sir. I Yes. think now you all understand about the bomb meter, bomb calorimeter. आपको अभी Yes, वीडियो sir. देखने के बाद अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा, मैं ऐसा सोचता हूँ. Yes, sir. जी सर. तो हमारा जो चैप्टर के जो कंटेंट्स थे उस हिसाब से यूनिट 4 और 5 अभी खत्म हो गए हैं. ठीक है, तो अभी हम एक आपसे अगर कोई क्वेश्चन है आप पूछना चाहते हैं तो आप कुछ भी पूछ सकते हैं, क्योंकि यहाँ तक जो हमें डॉक्टर अजीत ने दिया था सिलेबस, we have finished the unit 4 and 5, Mr. Ajit, as per your syllabus content, as well as we have you can say cover the NBC also. So fire load calculation part is now over. Now students need to carry out the exercise which they have not done. They need to done the exercise and share to you, as well as if it is possible for all participant to have a visit of such type of building, normal building, and in nearby building, and compare how much fire load is being increased by resident or different type of building owners, so that you can understand, yes, it is a normal or calculated or as per design fire load here it is visible, and this area it seems to be deviation, and how much deviation is acceptable. If deviation is in non-acceptable data, then what will be the additional protection required? But what happened, people are not means agree to have additional protection, but they want to have a increased fire load. You can find stairs, terrace, walkways, somewhere you can find such type of combustible material, or basement, below the staircase at ground floor, you can find combustible material are being stored, and these places are prone to fire. So this type of you can say session, or this part of your syllabus is very helpful, because whenever you go, you need to define as a term of high fire load. You will say, सर ये आपने कचरा रख दिया जलाने के लिए, या पेपर रख दिया सर, ये तो आग लग जाएगी. अब उसी को आप दूसरे तरीके से कह सकते हैं, you have increased the fire load. It will increase the severity of fire, loss of life, business interruption. Right, sir. So fire load terminology can use as a tool, not to means you can say डराने के लिए नहीं है किसी को, लेकिन समझाने के लिए तो जरूर है, समझाया जा सकता है. जैसे मैंने आपको बताया, 2-3 मैंने आपको प्रैक्टिकल बोले थे, आपने किए नहीं होंगे. मैंने कहा था एक हॉरिजॉन्टल स्टिक लेना, उसको जलाना, फिर वर्टिकल पोजीशन में जलाना, एक बाल्टी पानी पास में रखना अपने, तो आप करके देखना, उससे पता चलेगा. पोजिशनिंग इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. फायर लोड वही है, हॉरिजॉन्टल स्टिक रहेगी, वर्टिकल रहेगी, फायर लोड चेंज होने वाला है क्या? नहीं रहने वाला. लेकिन प्रोपेगेशन ऑफ फ्लेम इट्स मैटर. व्हेन इट इज इन हॉरिजॉन्टल and when it will be vertical, then vertical flame propagation and speed of burning, generation of smoke and other unburned particles and gases will be much higher than in comparison to horizontal burning scenario. So it need to be understand also. If suppose you seen that lot of bamboos are
store in a room or in a building in vertical position, and they are not willing to mobilize, or they are not willing to, you can say, minimize the fire load, then what you can suggest them? Horizontal position. Yes, simply he will be very happy, and your work is done. Sir, can we have this vertical storage into horizontal? Then I think he will say, okay, it can be done, but it will take time. So we will do it. And after a few time, you can see it is happening. I'm sharing a very simple example. I'm not taking the name of any company. I have a visit in warehouse. They have stored a flammable drums of 200 liter, 3 tier, 3 layer. They have stored 1, 2, 3 like this. And the level of protection, they are having a firefighting water only. They are very happy that we have installed the firefighting system. And when I visit, they proudly said, sir, we are having this type of firefighting system here. You can see we are very fire conscious. I appreciate them. At least they have a system, but they don't have a correct extinguishing media for class 3 petroleum product. So it is a foam. You need to have a foam to fight the fire. Okay. If you can have a foam, then how you are going to apply a foam on 3 layer? Because you don't have any fixed monitor which can apply the foam at more than, you can say, 50-meter height, or a horizontal throw at 50 to 60 meter. So they can procure a trolley mounted foam making nozzle, 200 liter, because they are not in condition to have a monitor and all the things, and storage of water is not in quantity that can cater the monitor. Then what is next? I simply tell them, keep it cut this 3 tier into 2, so that you can apply foam with foam making branch at this level. And at 3 tier, it is not possible to apply the foam, even though it is suggested to have a single layer only, single tier. In few days, they have done. If suppose I stick on to that I need the foam tank, monitor fix here, that. So sometimes we need to think in a calculative way, and what is the practical recommendation should be. It should be achievable, or other option we can suggest also. But you will say, if we deviate the standard norms, then we will be fixed. Yes, it is there. You will be fixed because you have audited. You have not given the right picture to that particular premises. But for time being, till these things as you desire or as you suggested, there are 3 type of action: short term, long term, and short term, medium term, and long term. Some action which can be done within 30 days. Some action can be done within 60 days. Some action take more than 60 days because it needs financial support, and the budget is not there. Next year they can plan. This way, the recommendation should be like a way, so that you are always to be at safer end, as well as you have already identified the risk and given them the recommendation, and now they are the person who need to act on that. When they are going to act, it's depend on them, and what are the priority of their organization. That is also there. So I think I have finished, and if anybody is having any query, we can talk few minutes or more, or I want to have a recap from all of you. आप सभी से एक एक आदमी 5 मिनट बोले और बताए कि हमने लास्ट 3 सेशन में क्या सीखा, और उसके बाद हम क्लोज कर देते हैं. तो आपका भी एक बार रिकैप हो जाएगा. जैसे सीरियल आप टीवी में देखते हैं,
तो पुराना जो जहाँ खत्म किया था थोड़ा सा आपको दोबारा याद दिला देते हैं वो। तो ऐसा ही मैं चाहता हूँ रिकैप पार्टिसिपेंट की तरफ से कि हमने क्या पढ़ा लास्ट 2 दिन। Sir, so unit 4 and 5 is completed, right, sir? Yeah, Ajit, is there any time or we have done? No, there is time, sir, but I am asking that unit 4 and 5 is completed by today, right, sir? Yes, unit Okay. 4 and 5 is completed. Okay. I have sent it the 2 PDF presentation, today presentation PDF, I will send it to you. Okay. So Okay. student might get all 3 presentation. I hope last 2 presentation all have got. Yes, sir, that I have uploaded in their classrooms. Yes. So Yes. now their part is remaining. They need to prepare MCQ till Yes. they are having a presentation. So they can take 3-4 days to prepare a MCQ and share to Dr. Ajit, and Dr. Ajit will share to me. Write your name also, who has prepared the MCQ. Okay. Okay, sir. Sir, Please, Snehal. We will Sachin start here, with Snehal. Yes, sir. I want to have a recap from you about our 3 session, how the session gone, or what we have learned, or what is your feedback to for me. If there is any scope of improvement, it is always there with anybody. But if somebody has noticed that this part or these things can be improved, so that I can improve, and coming session will be on fire risk assessment as per NFPA 551. It will take time. After, you can say, at the last of the Feb, I will be able to take. So I will coordinate with Ajit so that you can come to know that session and all the things. So till now, what is your means learning in 3 session, and what is your feedback, Snehal? Yes, sir. So I will start with first good things. The way you are teaching us, suppose you ask us to do the exercise of calculate the fire load in your room. So it is until now practically especially for me, I didn't have any fire load calculation. But when you gave me, but from the formula it looks like very simple. But when I started, I had many problems. Before starting the exercise, I had many problems. But when it looks very easy. But when I actually started, I said, no, I know nothing. It takes too much time, too much practice it needs. So the thing you realize is where we are and where we need to go. So this is a very good thing. You give the exercise, and I know you from our FSO class. Before you also did the same thing. In the building, you call us come mechanical engineer here, electrical engineer here. Everybody you came in. So this way of teaching is really helpful to us, sir. And another thing, another feedback, what actually I was expecting, but during this COVID time, I think it is not possible. But if it is possible for you to for the practical visit or some of the industries or some of the institutional building anywhere, and give us the for the building you have fire load calculation, just bring us there and ask us to prepare the fire load calculation. We will prepare and we will match what mistake we did, actual what is the fire load and what we did. So by this way, it will be good exercise. You are mute, sir. Please unmute yourself, sir. Sir, you are on mute mode. We cannot listen you. Yeah, it is you can say it is a practical problem in COVID, but you can do it in your building area or nearby area. If you are having you can do it. You can prepare 3-4 fire load calculation and share to each other, and have a group also that I have shared you my fire load calculation of this building. Please validate it and revert to me. In like way, other person can send it their calculation. So it will be a time. It is definitely, it will be. I have also been called to be physically present in class at Vadodara, but due to this COVID situation, I am not allowing myself to travel anywhere.
Otherwise, we can have a such type of exercise at field. It will be very fruitful and easy to understand. Like you have seen the video, now you are able Yes, to sir. understand what is BOM. Okay. Yeah. So thank you, Snehal, for your feedback. And Shailesh ji, आपका क्या feedback है? Yeah, आपका sir. Another one thing I want to add. So या हम लोग आपस में करेंगे ना, तो हम लोग गलती करेंगे। जब तक कोई एक्सपर्ट नहीं रहेगा ना आपके जैसा, तो गलती पॉइंट आउट करने के लिए तो कोई तो भी चाहिए आपके जैसा। यू आर मेकिंग मिस्टेक्स हियर, इम्प्रूव। मैं आपको एक शेयर करूंगा, कंपनी का नाम निकाल दूंगा मैं। मैंने हाँ, ओके कैलकुलेट सर। किया है फायर लोड एक पूरी कंपनी का, है ना। मैं वो शीट में अजीत को शेयर कर दूंगा, एक्सेल शीट, आप देखिएगा। बाकायदा फार्मूला लगाया है उसमें। मैंने इनटू में भी मैंने इनटू नहीं किया है, एक्सेल शीट में फार्मूले के साथ किया है। तो आपका गलती से भी गलती नहीं होगी, लेकिन आपको किस कॉलम में क्या चीज डालना है वो एक बहुत जरूरी है। और एक चीज हम जो फैक्ट्री एक्ट के हिसाब से फायर लोड कैलकुलेशन करना बहुत ही तकलीफदायक है। A + B + C + D डिवाइडेड बाय 20, वो वाला मैंने आपको बताया नहीं है, लेकिन उसमें वाटर कैलकुलेशन निकलता है। तो अभी फायर लोड में आपने वाटर कैलकुलेशन निकाल लिया, तो उसके बाद क्या करेंगे आप? वाटर कैलकुलेशन के बाद आपको फायर प्रोटेक्शन सिस्टम के बारे में सोचना पड़ेगा, कितने घंटे के लिए डिजाइन करना है, कितने नंबर ऑफ हाइड्रेंट होंगे, एक हाइड्रेंट से दूसरे हाइड्रेंट की दूरी कितनी होगी, मीडियम लो हाई हैजार्ड के हिसाब से 15, 30, 45, 60, 90। तो ये आपको एक डॉक्यूमेंट है टैरिफ एडवाइजरी कमेटी का, जो मैंने आपको कहा था कमेटी अबॉलिश हो गई है, उसके डॉक्यूमेंट को आप डाउनलोड करिए, पढ़िए। बहुत ही बेहतरीन डॉक्यूमेंट है। किसी को कुछ भी नहीं आता है तो वो जान सकता है किस प्रकार का सिस्टम कहाँ लगाना चाहिए। बाकी स्टैंडर्ड में थोड़ा इतना क्लियरिटी नहीं है। वो बहुत ही अच्छा डॉक्यूमेंट मुझे लगा। ऐसे तो डॉक्यूमेंट तो सारे एज पर स्टैंडर्ड अपना अपने हिसाब से आपको फॉलो करने पड़ेंगे, लेकिन इनिशियली जिसको स्टार्ट करना है उसके लिए बहुत अच्छा डॉक्यूमेंट है। ओके, सो सर पॉसिबल है ना, तो एक फायर लोड कैलकुलेशन एज पर एनबीसी, एक एज पर एनएफपीए और एक एज पर फैक्ट्री एक्ट, अगर आपके पास है तो। हाँ, मैं वो कोशिश करूंगा। मेरे पास A + C + A वो जो फैक्ट्री एक्ट वाला है उसका कंसोलिडेटेड है, और एक जो हमने कंबस्टेबल एनबीसी वाला जो है वो तो है मेरे पास। तो वो मैं यहाँ भी शेयर करना चाहता था, लेकिन क्या है कि मैंने सोचा फिर फायर लोड करते हुए आप इतना ज्यादा परेशान ना हो जाए, है ना। तो वो करेंगे हम। ओके सर। शैलेश जी, आप कुछ कहना चाहते हैं? शैलेश पटेल भाई। यस सर, ये आपके सेशन से जो फायर लोड का फंडा बिल्कुल क्लियर हो गया, क्योंकि हम लोग कई बार सोच रहे थे कि वो फैक्ट्री इंस्पेक्टर कुछ रिमार्क कर देते थे कि फायर लोड गिन के हमको दे दो, 2-3 पेज में बना के कुछ सबमिट होता था। तो वो लगा कि बहुत लंबी प्रोसीजर है और पूरा सब कैलकुलेट करना है। मैनआवर भी लगता है इसमें। आपको एक पूरी लंबी चौड़ी फैक्ट्री दे दी और आपने कोटेशन दे दिया कि मैं तो 10,000 में कर दूंगा, तो पहले समझना पड़ेगा कितना एरिया है, कितने दिन लगेंगे, कितने मैन पावर लगेंगे, कितने आदमी चाहिए आपको अपनी टीम में, है ना। सर एक क्वेश्चन था, जैसे कोई कपबोर्ड है, स्टील का कपबोर्ड है, उसके अंदर फ्लेमेबल कुछ मटेरियल स्टोर किया है, तो उसका भी, और उसमें समझ लो कि 3 टायर है, तो उसको भी कैलकुलेट करना पड़ेगा ना। यस, स्टील का वेट अलग, अंदर अलग, लकड़ी का, क्योंकि उनको क्लैरिफिक वैल्यू अलग अलग टेबल में दी गई है ना। तो पूरा कैलकुलेट करना पड़ेगा। हाँ, तो अभी मिस्टर व्यास क्या बोलना चाहते हैं आप हमारे सेशन के बारे में, या कोई आपकी क्वेरी या फीडबैक है तो मिस्टर व्यास नवादिया है क्या? मिस्टर व्यास नहीं, 20 व्यास है सर, नवोदय व्यास। आपने पहचाना नहीं? नवोदय है क्या? नवादय नहीं पा रहा हूँ। ओके, बोलना चाहते हैं? गुड इवनिंग सर। सर आपका सेशन से बहुत अच्छी क्लैरिटी मिली है, बिकॉज in first season my thought was that we have to calculate the fire load, but on not very ground level, but you explained that it should be very specific. आपको जो मेजरमेंट करना है, आपको बेसिकली क्या मटेरियल है उसका ही आपको लेना है,
कि आप लेथर्जिक और हैपजार्ड वे में आप नहीं करना चाहिए. तो दिस वाज वेरी मच टॉक फॉर मी, जिससे जिससे आई कैन डू बेटर. और आपके जो दो सेशन में आपने जो फायर लोड के साथ साथ ये अपना एनएफपीए का एनएफपीए 557 जो स्टैंडर्ड डिटर्मिनेशन ऑफ फायर लोड फॉर यूज इन स्ट्रक्चर फायर प्रोटेक्शन डिजाइन के बारे में बात की, मटेरियल सेफ्टी डाटा सीट और एलईएल और यूएल के बारे में समझाया, और सीवियरिटी रेट जिस तरह फैक्ट्री में कैलकुलेट होता है उसी तरह फायर का भी फायर का भी रेट हमें कैलकुलेट करना पड़ता है, उसका फायर लोड फायर डेंसिटी ऑन. तो सर बहुत ही अच्छा लगा, और आपके गाइडेंस में बहुत और चीजें नेक्स्ट चैप्टर में सीखेंगे. थैंक यू सो मच सर. Thank you. Mr. Sachin, you want to say something about class or feedback about Yes, sir. Class is very good and 10 out of 10 and No, wonderful. I'm We not have my purpose is not feedback, because I'm not a professional or a professor of this university, so that I can get 10 of 10 means I will be get benefited. But my purpose is that we have spent these 3 days are fruitful to all of you, or how we can make more fruitful. That is the main concern, to take you feedback so that I can improve myself if it is required. Yeah. परफेक्टली सर. अभी तक के जितने भी सेशन हुए उसमें से बहुत मजा हमको अच्छा लगा, मतलब आपका कन्वर्जेशन जो फीडबैक और वो सब था. अनफॉर्चुनेटली जो असाइनमेंट आपने जो दिया था वो मतलब नेटवर्क इश्यू और उसके वजह से प्रेजेंट नहीं कर पाए. It is not. बट वी विल श्योर. आप समय लेके करिए उसको. हाँ सर, हाँ सर, हमारा श्योर. स्कूल के बच्चों का क्लास नहीं है कि कल मैंने होमवर्क हाँ. किया आपने क्यों नहीं किया, लेकिन अगर कर लेते तो अच्छा क्लियरिटी हो जाता. और जो हाथ से करा हुआ चीज होता है, खुद सेल्फ जब आदमी कैलकुलेट करता है ना, तो अभी आप लेके आते तो मैं आपको ऑनलाइन बता देता. जैसे हमें शैलेश जी और वो हमारे स्नेहल भाई कह रहे थे कि सर हमने कहाँ गलती की, हमें तो पता नहीं चलता. तो वो ये एक पार्ट था. नो यस इश्यू. सर, यस सर, यस. Yeah. एंड सर एक था क्वेरी के अपना जो फायर लोड कैलकुलेशन है, अभी आपने बहुत डिटेल में एनएफपीए 557 के ऊपर बताया. तो एक है एनएफपीए 557 और दूसरा अभी जो एनबीसी में जो थोड़ा डिटेल दिया है, और उसमें जो अभी एनएफपीए 557 में जो डेविएशन का आपने बताया कि इतना डेविएशन और इतना अलाउेबल है, नहीं है तो प्रोटेक्शन ज्यादा देना पड़ेगा. तो एनबीसी में ऐसा कुछ दिया हुआ है कि डेविएशन इतना अलाउेबल है और इससे ज्यादा है तो? मिक्स ऑक्यूपेंसी वाले में आ जाता है डेविएशन, कि आपका मिक्स ऑक्यूपेंसी या मल्टीपल ऑक्यूपेंसी आ जाती हैं, तो वहां पे एडिशनल प्रोटेक्शन की जरूरत है. जो हायर एंड पे है उसका हिसाब से प्रोटेक्शन आपको सोचना पड़ेगा, लेकिन परसेंटेज वाइज इस तरह का डेविएशन वहां नहीं दिया गया है. इसलिए मैंने आपको बोला कि आपका क्लाइंट कौन है, किस स्टैंडर्ड पे फायर लोड कैलकुलेशन कराना चाहता है. फैक्ट्री एक्ट के हिसाब से आपको किसी ने बोला कि मुझे तो वाटर कैलकुलेशन कर दो भाई, कितना पानी चाहिए. तो ना तो ये कंबस्टेबल मटेरियल चाहिए उसको, ना एनएफपीए चाहिए उसको. एज पर फैक्ट्री एक्ट 66 में रूल 66A में लिखा है, 66A में जो दिया है A + B + C + D डिवाइडेड बाय 20 पानी का कैलकुलेशन करके निकाल दो. लास्ट में उसमें यही लिखा हुआ आएगा 2 टेलर पंप चाहिए बस. हाँ सर, उसमें तो पानी का कैलकुलेशन और ट्रेलर पंप का रिक्वायरमेंट दो ही आइडेंटिफाई होता है ना, उसमें कोई डिटेल में हाँ नहीं होता है. हाँ बराबर. तो कोई बात नहीं. अपना तो उसके अलावा कोई दूसरा स्टैंडर्ड आईएस स्टैंडर्ड ऐसा कुछ नहीं है ना सर? वो तो हमने एनबीसी बताया ना आपको. एनबीसी हाँ, एनबीसी और एनएफपीए 557. यस यही 2 हैं. उसके बाद हम जो फायर रिस्क असेसमेंट वाला चैप्टर करेंगे ना, बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है. अभी मेरे को टाइम नहीं मिलेगा, 20 तक मैं बिजी हूँ. तो 5.1 में जो फायर रिस्क असेसमेंट कैसे किया जाता है, क्वांटिटिव फायर रिस्क, क्वालिटेटिव रिस्क, 4x5 4x4 मैट्रिक्स, 5x5 मैट्रिक्स, बहुत ही इलेबोरेटेड वो एक है. तो जब आप एनएफपीए का फायर लोड पढ़ लिया तो एनएफपीए का फायर रिस्क असेसमेंट भी आना चाहिए. क्यों एनबीसी तक रह जाए, हम अपने आप को क्यों बांध लें. आपको दिए आप उड़िए, उड़ने के लिए किसने रोका है, है ना. क्या मिस्टर निशित भट्ट. थैंक यू सर. यस सर, नमस्कार सर. नमस्कार, बताइए सर. बहुत बढ़िया लगा सर क्लास से, और हमारे जो भी डाउट थे वो अभी धीरे धीरे क्लियर हो रहे हैं, लेकिन मजा आ रहा है सर. ओके. अभी और कोई रह गया फीडबैक, किसी को देना है, कुछ बोलना है? ये मिस्टर व्यास रह गए हैं, ये लगता है चले गए ज्वाइन करके. सर शी इज नवदा, शी इज लेडी, शी इज नवदा व्यास.
हाँ अच्छा ओके ओके सो सॉरी सो आई वांट टू हियर फ्रॉम नविता व्यास Sir, she is a FSO, advanced, second batch. okay I Architect. can understand it is a architect Yes, yes, yes. but architect today is not speaking why उनका सर मैसेज आया है कि वो माइक में इश्यू है. ओके ओके नो इशू बिकॉज हमने एक्सरसाइज की थी मुझे याद आ गया एफएसओ में तो ये आर्किटेक्ट हमने इनको बनाया था यस यस ओके नो इशू ओके सो हैव ए वंडरफुल डे गुड नाइट सी गुड यू नाइट सर. Okay, okay good thank night. you Dr. Ajit for your coordination